Hello and a very warm welcome to everyone. Coding Ninjas present you all the very first episode of the Tech View, LinkedIn, Job Hunting and You, featuring Sashank Bhaiya, our proud alumnus and an upcoming project manager at Microsoft. So grab your notebooks and get ready to supercharge your profile, level up your networking game and learn some crazy tips and hacks. So without any further delay, let's begin. So let's begin with the introduction. What is the Tech View? The Tech View is an exciting tech talk and an interactive learning series by Coding Ninjas ITR designed to bridge the gap between students and industry experts. It is not just another lecture series, it is a fun, engaging, and knowledge packed experience where learning meets networking. In the Tech Brew, students get a chance to firstly learn real world skills directly from professionals working in the top companies, secondly, participate in hands on activities, quizzes, and tasks to test and improve their skills. And thirdly, interact with industry experts and get their career guidance that goes beyond the textbook. Now, moving ahead, I'm beyond thrilled to welcome our host, Sashank Bhaiya, who is here today to give you all some amazing stuffs about LinkedIn and networking. I, Ariba, your host for today, along with my Coding Ninjas family, welcome you today on our very first episode of the Tech View. Thank you, Bhaiya, for taking out time for us and joining us here today. All right, now moving on to the session flow for today. We will be beginning with the introduction to LinkedIn, then we will get a hands on live profile review. We will get an interactive Menti quiz for all. We will get a live Q&A with Shashank Bhaiya and a small task at the end for you. So stay still till the end and don't miss anything because we have more interesting stuff planned for you. So now, let's move on to the most awaited part, LinkedIn tips and networking strategies from Sashank Bhaiya. We are excited to hear you. The mic is all yours, Bhaiya. Hello everyone. And yes, today's session is LinkedIn job hunting and you. So first of all, let me introduce myself. I am Shashank and I am one of you guys just graduated like this year only. But there are a lot of things which I learned in this 4 year journey at the college. And apart from the college, I have been working in communities. I have been working with startups, companies, particularly in hiring field also. And apart from that, startups which have been which have been dealing with fintech and e-commerce and everything like. So I have like a pretty decent experience of how you can network on LinkedIn, because most of my jobs and most of my internships which I cracked, they were from LinkedIn. Now people can uh, differ on this thing that okay, LinkedIn is not such a great platform, but yeah, it is a great platform to showcase yourself. And why I am saying this, because I have got reviews and I have got appreciation from the people, from the industry experts themselves. या लिंक्डइन इज अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपने आप को शोकेस कर सकते हो. यू कैन लाइक शोकेस योर स्किल्स, शोकेस योर प्रोजेक्ट, शोकेस एवरीथिंग, build in public, build a personal brand. We will talk about personal brand also, how you build it and how it helps you, right? So today's session is gonna be like packed with uh, all about LinkedIn optimization, how as a student you optimize your LinkedIn. Then I'll talk about job application techniques. Like there are a ton of jobs in the market, but if you don't apply to them correctly or you don't reach out to the correct people, you are not going to land it. And this is a harsh truth, because I have been working with people who have like applied into 200 plus jobs, even with referrals, and haven't like landed a single interview. So there are some techniques, there are some reach out, you can say techniques simply, or there are some ways to which you reach out to people, and that's how you land different roles and different interviews. Then we will talk about some tools and resources which I have been personally using, and there are some, you can say, pretty small and tiny hacks which help you. So they are small and tiny, but they help you very much in your job hunt journey. And then we will have a Q&A. And apart from that, see, I'm one of you guys, and I just graduated only this year. So the thing is that we should like communicate very much during this session, because without communication, like neither I am going to understand what things you are like lacking, and nor you are going to understand that what I am telling and what it actually means when you actually apply it somewhere, right? So apart like
in each section I'm going to like demonstrate and do everything. But if you have any questions, you can just raise your hand, you can ask them, you can drop them in chats, anything, right? So let's start with LinkedIn, right? So the most important part of your LinkedIn, which is even visible when you post on LinkedIn, right? So like even when you are in first year, you know about LinkedIn and you create your profile. And let me take an example of a student who has zero knowledge of tech. He has just came into like फर्स्ट ईयर, जो कि जेई 2-3 बार फेल होके आ चुका है, ठीक है? उसका हो चुका है अभी, और वो पहली बार आता है कॉलेज में, और वो लिंक्डइन का नाम सुनता है और जहाँ वहाँ पर जाके एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेता है, राइट? So when you go into LinkedIn, so the first thing like on your LinkedIn profile is just your headline, right? It's your headline, and what you write about yourself on that headline is visible even when you post about something, right? Because even if you are posting your that a tiny headline, few words of your headline are actually like they're visible. So most of the student like joining into SOA, they are like, okay, student at ITR. Yeah, very good. That is good. You are a student at ITR. That's really good. Uh, See, I will consider that headline for day one. It's good, but the day you are in the college, you start learning, right? You start exploring terms, or even if you are not in college, when you are trying to join a college, or like you have like got your admissions, then you have must explored about topics like, okay, web development is something, Android development is something, okay, AI is taking over right now, so what things are going in AI, what developments are going in AI, right? So there are a lot of things that you explore about, you search about, and you find your interests. So when you join in, just learn about those things because they are going to be your headline. So this is your headline framework, which I personally follow. How to optimize it, like for best things, so that you land views on your profile, people actually view you, and you come in the eyes of recruiter also. So first of all, like you are a student, you can go with any of these student, freshman, sophomore, or whatever degree you are doing. If you are doing a BCA, you are doing a MCA, or even if you are doing any sales and marketing degree, that's also applicable. So that goes along, right? So if it is like an MBA, then it is MBA in XYZ, MBA in XYZ at XYZ. Okay, it is just like student of BTech CSE at SOA University, or BTech CSE or BTech CSE undergrad, that any of them would work, right? So this should be your primary headline when you do not know anything, when you do not know anything about any tech, right? And apart from that, you must have heard about some buzzwords, right? Okay, you have heard about algorithms, you have heard about, okay, something is known as data structure, something is known as CPP programming or Java programming. You can write about it. You have like in the first semester आपका सबसे पहला सब्जेक्ट जावा होता है, you can write about, okay, learning Java, right? Or learning Java programming, or developing Java programs. That should be your second line. And apart from that, if any achievements or certificates you have done, like अगर आप फ्रेशर हो, अभी एकदम कॉलेज में आए हो, तो कुछ भी लिखो, बट लिखो, ठीक है? जो आप सिंपल उसको लिख के छोड़ देते हो, स्टूडेंट एट समथिंग, वो थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, ऐसा चला जाता है कि कोई आपका प्रोफाइल व्यू नहीं करेगा, बिकॉज एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अगर आपको स्टैंड आउट करना है, तो हाँ, प्रोफाइल में कुछ तो दम होना चाहिए, राइट? तो कुछ ना कुछ चीज़ें, और कॉलेज में आने के बाद अगर आप फर्स्ट ईयर या 6 मंथ्स पास्ट इन योर फर्स्ट ईयर, और आप कुछ एक दो सर्टिफिकेशंस कर लेते हो, पुट दैट देयर, राइट? बिकॉज आई एम हैकर रैंक जावा सर्टिफाइड, अगर हैकर रैंक भी से भी शुरू करते हो, कोड फोर्स से शुरू करते हो, तो वो भी बेटर है कि आई एम पीपल ऑन कोड फोर्सेस. सो these things make people click on your profile and land there, and then they start exploring. So this acts as a hook. This actually acts as a hook in the pond, you can say, where the fish gets caught up, right? So इस हेडलाइन के लिए एक सिंपल सा फ्रेमवर्क मैंने बना के रखा है फ्रेशर्स के लिए. पहले मैं भी खुद यही फॉलो करता था. सो उसके एग्जांपल्स भी मैंने दे रखे हैं. आप देख सकते हो कि लाइक बीट, अगर आप सीएससी से हो, ईसी से हो, कुछ किसी से भी हो, यू कैन ट्राई दिस काइंड ऑफ थिंग्स. और ये जो थर्ड वाला एग्जांपल है, दिस इज फॉर द पर्सन जो, अगर आप एक इंटर्नशिप लैंड कर चुके हो, लाइक व्हेन यू लैंड अ इंटर्नशिप, और इवन डोंट लैंड अ इंटर्नशिप, बट you are like an Android developer. You have done some course, you have built some few apps, like and you have tested them, and you are confident that you are an Android developer or a iOS developer or a web developer. You can write about yourself like this. Okay, I'm an Android developer at XYZ, or I'm just an Android developer exploring Kotlin multi-platform on Java, or exploring Flutter or React Native, anything which you want, जो भी technology आप follow कर रहे हो. उसके बाद, if you have any certifications, if you are building, just like I am building Skill Valley. So if I'm building Skill Valley, I have written building Skill Valley, right? So if you are building something like that, building in some club, building in club,
community, you can write that. So this gives a weight to your profile even as a fresher, right? So this is first of all the headline optimization. Am I clear? Give me a thumbs up guys if I'm clear, like किसी को कुछ डाउट नहीं है, सबको समझ में आ रहा है ये चीज? Okay, 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 I can see some yes and thumbs up. Okay, everything is clear. Great, great, great. ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो चैट में डाल देना. I'll just see. Okay, great. ठीक है. Can we move to the next section please? ठीक है. अभी उसके बाद ना अपना आता है अबाउट सेक्शन. सो नाउ अबाउट सेक्शन. सो नाउ ये ना बड़ी अजीब सी चीज है, मेरे को लगता है, मैंने ये भी देखा हुआ है कि कुछ लोग ना थर्ड पर्सन में लिख रहे होते हैं अबाउट सेक्शन को. लाइक अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ, नहीं मैं अपना एग्जांपल नहीं लूंगा इसमें. ओके, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ऋषभ का. सो अगर ऋषभ की प्रोफाइल है तो ऋषभ ऐसे लिख रहा होगा कि Rishabh is a very talented guy. He is doing BTech CSE from Sova University, and he is developing this, that, and he is very good with data structures algorithm. So I don't personally think that that's a good option because it's your profile and it's like a sales pitch. Okay, अगर शार्क टैंक किसी ने देखा है तो शार्क टैंक में वो जो फाउंडर्स को 2 मिनट की वो नहीं मिलती है, पिच मिलती है कि ओके देयर आर 2 minutes, पिच योरसेल्फ. Just like you can consider it as an extempore competition where you are just giving an extempore speech, 2 minutes, that's all. Okay, so वो उस तरह का about section को you should treat like that. Okay, it's a 2 minute introduction to whatever you do, and that 2 minutes should be like good enough to attract someone to your profile or know more about you, or like even think about you, okay, this guy is doing something, I should have talk to this guy or hire this guy or something like that. So you have to make it that effective. And now as a fresher you don't have that kind of skills, I understand. You don't have that kind of knowledge, I understand. That kind of experience, that's good. That's okay, that's completely okay, but you have to write it like that. Okay, so again the framework is pretty much simple. You have to start with your introduction and whatever you are currently doing. Even if you are freelancing, interning, pursuing a degree, if you are pursuing a degree you can like write it. Okay, I'm pursuing BTech CSE from here, I'm pursuing PGDM from here, MBA from here, MCA from here, anything. And exploring data structures and algorithms, exploring AI ML, exploring cyber security, whatever you are like, whatever you are into, whatever your core skill is, you have to mention that along with your degree, along with your education. Apart from that, if you are interning, you are freelancing, you are delivering freelancing projects, you can write a line that I have delivered 6+ freelance projects within the time limits and closed budget, right? So you can also write that. So this should be your first 2-3 lines. Apart from that, you can write about your skill set that should follow you. So if I'm a web developer, right, if I'm a web developer, I would write, okay, if I'm developing applications using JS and JS based frameworks, I'm using JavaScript and JavaScript frameworks. So I would write something like, okay, I am a JavaScript developer who works with JavaScript based frameworks like Next.js, React, vanilla JavaScript. And apart from that, I have been working on backend frameworks like Node.js, Nest.js, Django, Fast API, everything. So whatever skills do you have, even if you are in cloud, even if you are in cybersecurity, you know some cybersecurity tool, you are into penetration testing, or you are into bug hunting, or even if you are into some ethical hacking stuff, doing some certification, you can write that. If you are in cloud, if you are doing some practitioner certification or anything, you can write that. So everything, every skill, you should mention it, right? And skill means both hard skills and soft skills. If you are good with communication, mention it too, that I'm really good with the communication, I'm really good with the organizing stuff, I'm good with management. Everything you can write. And then the third section, whatever you have achieved, whatever projects you have done, right? So you can add it. So it's a brief introduction, so you do not have to write a whole length of it. Projects कहाँ जाएंगे, projects का बाकी सब क्या होता है वो मैं बता दूंगा आगे. But बहुत ज्यादा इसे पूरा क्या कहते हैं रामायण नहीं लिखना है वहाँ पर जाके, छोटे में लिखना है, शॉर्ट में, राइट? सो प्रोजेक्ट्स में अगर आपने लाइक अराउंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट में अराउंड लाइक iOS या मल्टी प्लेटफॉर्म एप्स बनाया है, सो आई हैव डेवलप्ड 3+ मल्टी प्लेटफॉर्म एप्स, आई हैव बिल्ट अ प्रोडक्ट एंड लॉन्च्ड इट इनटू द मार्केट, राइट? ऐसा कुछ बनाया, फ्रीलांस वर्क किया तो अगेन वो भी डाल सकते हो. सो वॉट एवर लाइक जो भी तुमने बना रखा है अभी तक या कुछ भी डेवलप किया है अपने ऊपर, वो चीज़ तुम वहाँ लिख सकते हो.
और उसके बाद अपने अचीवमेंट्स लिख दो। अगर तुमको तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेशंस हैं या तुमने कोई कोर्सेज आई मस्ट से डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एज अ फ्रेशर डाल सकते हो, चलेगा। सर्टिफिकेशन है तो ज़रूर डालो। और लास्ट में ज़रूर ऐड करो, एज अ स्टूडेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट to let others know or let the recruiters know that what positions you are looking for or what positions you are interested in. So drop a line that I'm currently looking for software development interns or web developer interns, Android interns, AI/ML interns, whatever you feel like that what is the role for you, you should write that. So I have a like very good example for you also. Yeah, so this is the introduction of one of my friends only. He's developed. So this is why I picked up this example, because he's not from CSE, guys. So he's from an electronics branch, and despite of being from an electronics branch, he's into CSE things. He's into web development. He's into DevOps also. So you can see he has followed the framework. What he's currently doing, he's a front end developer currently, and his education is there, right? From where he is doing, and then he is like telling that what he does. He creates the apps using the tools which are followed, like which are the skills basically, Next.js, React, and TypeScript. So the framework is followed here. He is also learning DevOps, so he has written about all those things that he currently holds hands on, like whatever things he's good at. And apart from that, he has mentioned all the highlights, all the things he has built. You can see line by line. And at last, he has mentioned looking for the SDE rules to solve complex and tech business problems, right? So this is the complete breakdown of that framework and the complete prompt that complete about section that you can write about, right? Even if you copy that about section, whatever like framework I gave you, and give it to ChatGPT and give your information about yourself, it will generate a very good about section for you, right? So you don't even have to like put your mind to write these sections. So yeah, but if you want to be good at writing, just do it yourself, right? So this was the actual about section, that how do you write it. ठीक है, so ये तुम्हारा दो सेक्शंस हो गए, इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं लिंक्डइन के। अब हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है? सो कमिंग टू द नेक्स्ट, ओके, somebody have what's one trick to get noticed by recruiters more quickly? I'll come to that, Arnab, right? I'll come to that. Noticed by recruiters. There are a lot of things which will get you noticed. See, there are like what you say. There are like this whole things basically. If we don't, okay. So there are like this hook things. So the headlines go on your like profile every time you post something. So if you have written that I'm an Android, like you are an Android developer with all that experience, and you are interning something, so that gives, if recruiters are looking for someone with that role, if the recruiters are looking for an intern, and if you apply for some intern, so you will definitely land in their whatever I say, like land in their eyes, or in their sheets, wherever they are like looking for things, right? So वो चीज़ रहती है. Apart from that, there is something known as personal brand, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. So personal brand is all about कि how you portray yourself to people, how you portray yourself on LinkedIn. If you are an Android developer, you continuously post about things, कि आप क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो, आपने प्रॉब्लम्स क्या फेस करी. If you go on my LinkedIn, you will find similar posts. Whatever I'm developing, I'm posting about it continuously. And when somebody comes to my profile, which recruiters generally do, when they come to my profile, they see that this guy is building something, and this guy is continuously working on different packages. He's developing some packages, developing with all sort of things which is like related to back end or front end, right? So that actually gets you noticed when you post about things, when you build projects, right? And then post them, and you get views on them, you get people shouting you out, right? That's all. So वहां पर थोड़ा सा आपको एज मिलता है. इफ वी डोंट हैव एनी हाइलाइट्स, लिप्सा दास का क्वेश्चन है, अगर हाइलाइट्स नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं, आपने कोई ना कोई सर्टिफिकेशन कर रखा होगा, वो भी नहीं कर रखा, आप किसी ना किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, इवन इफ यू आर वर्किंग ऑन सम एप्लीकेशन, इवन इफ यू आर लर्निंग सम टेक स्टैक, वो डाल दो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता. जब आपके पास हाइलाइट्स हो जाएंगे तब आप उसको ऐड कर देना. एज अ स्टूडेंट यू शुड लाइक डू इट. सो ये दो क्वेश्चंस थे, और किसी को कुछ पूछना है? बिकॉज आई विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. जॉब हंटिंग थोड़ा सा बाद में आएगा. आई विल मूव टू लाइक थोड़ा सा और लिंक्डइन समझाना है मेरे को. गुड गाइस, यू आर गुड with everything right now? Tell. मैं फर्स्ट ईयर से हूँ, हमें सर्टिफिकेट के लिए कहाँ पे क्या करना होगा? गो टू हैकर रैंक ब्रो, गो टू हैकर रैंक. सब बेसिक सर्टिफिकेशन चाहिए तो हैकर रैंक पे चले जाओ. सी आई एम नॉट इन फेवर ऑफ पेड सर्टिफिकेशंस एट ऑल.
I haven't done, even myself, I haven't done any paid certifications for all 4 years, right? uh, I'm a very like a person, YouTube guy person, so I just learn, and most of the time I'm read documentations. So that's one thing. So if you really need some certifications, go to HackerRank. Yeah, Free Code Camp is there. Free Code Camp, really good certifications. Their web development certifications are really good. Apart from that, GFG certifications, there are some free certifications on GFG also, so you can get it from there. एंड मोर अबाउट लाइक सर्टिफिकेशंस पे उतना ज़्यादा मत भागो, थोड़ा सा लर्न करने की तरफ रहो कि लर्न कितना कर सकते हो। अगर कोर्सेरा वगैरह पर भी, या ऑडेसिटी या कोर्सेरा पर आप जाके अप्लाई कर सकते हो फाइनेंशियल एड के लिए। सो दैट्स अ ट्रिक। इफ यू अप्लाई फॉर फाइनेंशियल एड, दे गिव यू सर्टिफिकेशंस फॉर फ्री, they give you their courses for free. So this is something just it's kind of a rabbit hole. Just move, go to that section and read about it, that how you can get those certifications which are paid one for free. So they give you if you apply for the financial aid, right? ओके ओके ओके, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। इंटर्नशिप जरूरी है क्या भाई? कौन से ईयर में हो पहले ये बताओ। अभी से इंटर्नशिप्स, अगर थर्ड ईयर की हो तो समझ में आता है, बाकी मैं करता कौन सा यूट्यूब चैनल फाइल। बहुत सारे क्वेश्चन है, चलो थोड़ा सा बाद में एंटरटेन करूंगा। कौन से हैं? ओके 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 ओके, आई एम कीपिंग ऑल दिस क्वेरीज। मेरे को एक सेक्शन और समझाना है, पहले मैं वो समझा देता हूँ, देन आई विल कम बैक टू ऑल द क्वेश्चंस, बिकॉज आप लोगों के क्वेश्चंस के लिए Q&A राउंड रखा है, वरना सेशन खिंच जाएगा। यहाँ पर लाइक यू कैन सी, मेरा जो राइटिंग फ्रेमवर्क है वो मैंने खुद फॉलो किया हुआ है, ठीक है। सो वट एवर आई एम टेलिंग यू, आई फॉलो माई सेल्फ, ठीक है। मेरा यहाँ पर अबाउट फ्रेमवर्क भी मैंने खुद वैसे ही फॉलो किया हुआ है जैसे मैंने बताया था। आई जस्ट राइट अबाउट माई सेल्फ, आई जस्ट डोंट राइट अबाउट माई डिग्री एनी मोर, बिकॉज मैंने वो ख़त्म कर लिया। सो मैं वो नहीं लिखता। सो मैं कुछ सेक्शंस के सेक्शन जो होता है तुम्हारा, जो तुम एक्सपीरियंस सेक्शन डालते हो। अब देखो, एज अ फ्रेशर तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। एंड जनरली तुम किसी ना किसी क्लब का होते हो, जैसे कि मैं गूगल GDSC का पार्ट था पहले, ठीक है। मैं एक पुराना क्लब था हमारे यहाँ, मैं उसका पार्ट था। सो वो मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस में डाल रखी हैं, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो पुट इट इन योर एक्सपीरियंस दैट यू आर वॉलंटियरिंग somewhere or something like that. So I have added those things to my experience. So my experience starts from some freelancing thing. यहाँ से मेरा एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है। फिर मैंने लाइक आई डिड माई ओन स्टार्टअप, दैट आई mentioned it here. Then I was in some program, I mentioned it here. Then I was a part of a club, I mentioned it here, right? So ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। Anything which is not a paid internship or anything which is not an actual experience, I call, because these are not actual experiences. Actual experiences आपके वही काउंट होते हैं जो आप पेड इंटर्नशिप्स करते हो, या ऐसी चीज़ें जो आप रियल में बिल्ड करते हो किसी कंपनी के लिए, किसी फर्म के लिए, राइट? So those are counted in actual real experiences. But still, अगर वो चीज़ें नहीं है आपके पास, don't worry, just do these things. अगर किसी क्लब में हो, वहाँ पर कोई काम कर रहे हो, so particularly when I was in GDSC, I was taking web development sessions, right? When I was at CDH, I was like conducting open source competitions and everything. I was taking sessions there too. कोई ना कोई टेक इवेंट्स करवाते रहते थे, तो वो वाली चीज़ें मैंने डाल रखी हैं, ठीक है। तो वो भी आप डाल सकते हो, देयर इज नो इशू। But there are few things in the experience section. So whenever you mention an experience, just don't mention that, okay, if I just write SD internet Pravi, मैं बस इतना लिख के छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ नहीं लिखता। ये जो मैंने इतना यहाँ पर लिख के रखा है, ये मैं छोड़ देता हूँ। और अगर कोई रिक्रूटर आता है और वो मेरा प्रोफाइल देखता है और ही विल सी दैट ओके, SD इंटर्न, एज एन SD इंटर्न मैंने वहाँ काम क्या किया, वो मैंने मेंशन ही नहीं किया है कभी, ठीक है। या एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैं क्या कर रहा था, वो मैंने कभी मेंशन नहीं किया, ठीक है। सो दैट डज नॉट गिव्स द क्रेडिबिलिटी। वो तो लाइक अगर आप ये चीज़ मेंशन करते हो तो आप और ज़्यादा क्रेडिबिलिटी ऐड करते हो अपने काम पर कि हाँ, मैंने ये चीज़ की है एंड आई हैव वर्कड अपॉन दिस थिंग्स। और इसको ऐड कैसे करना है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। मेरे सारे स्टेटमेंट्स में यू कैन इजीली सी, ये रेज्यूमे में राइटिंग का भी एक फ्रेमवर्क होता है कि ऑलरेडी यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद सम एक्शन वर्ब्स, जस्ट लाइक प्राइमरीली रिड्यूस्ड, डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड, डेवलप्ड, इंटीग्रेटेड, इंजीनियर्ड, वट एवर यू वॉन्ट, लाइक बिल्ट, वर्क, जितने यहाँ पर शब्द दिख रहे हैं ना, इस तरह से स्टार्ट करना है इसको, सो दैट कि तुमने कुछ ना कुछ किया है, वो थोड़ा सा एक असर्ट करता है उस चीज़ को, ठीक है। सो ये चीज़ हमेशा मेंशन करो कि अगर किसी भी क्लब में हो या किसी भी इंटर्नशिप में हो, तो वहाँ कर क्या रहे थे, तुम किस चीज़ पे काम कर रहे थे, ठीक है। ये एक्सपीरियंस सेक्शन में डालना बहुत ज़रूरी है। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब तक आपके पास कोई एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं होता, तब तक आप क्या कर सकते हो कि अपना क्लब वाला एक्सपीरियंस डाल दो, या आपने कोई अनपेड इंटर्न करी है वो भी डाल दो, चलता है। अनपेड इंटर्न्स, आई एम लाइक here I'm just telling you that I do not promote unpaid interns at all. Be skilled enough, build your skills enough that you should get a paid intern. uh,
आई नेवर डिड अ अनपेड वन एक्चुअल, राइट? सो वो वाली चीज़ है। सो जो भी है, मतलब अगर आप डाल रहे हो एक्सपीरियंस में तो उसको कंप्लीटली डालो, ठीक है? और एक्सपीरियंस में ना एक चीज़ और होती है, एक सेक्शन और होता है। सो वेन एवर यू लाइक एडिट एन एक्सपीरियंस या क्रिएट अ न्यू एक्सपीरियंस, ठीक है? सो वहाँ पर ना एक ऑप्शन यहाँ पर आता है, एड योर स्किल्स, राइट? यहाँ पर एक एड योर स्किल्स का ऑप्शन आता है। सो ये स्किल्स जो होती है ना, जैसे इफ आई एम डूइंग एन एसडी इंटर्न समवेयर, और वहाँ पर मैं अपनी कौन कौन सी स्किल्स यूज कर रहा हूँ। सो इफ आई एम यूजिंग नेक्स्ट.जेएस देयर, इफ आई एम यूजिंग जैंगो देयर, इफ आई एम यूजिंग एनी क्लाउड प्लेटफॉर्म और एनीथिंग, उसको यहाँ पर मुझे ऐड करना चाहिए, ठीक है? यू शुड ऐड इट। क्यों ऐड करना चाहिए? क्योंकि ये तुम्हारे प्रोफाइल पे एग्जैक्टली जाके रिफ्लेक्ट करता है कि कौन कौन सी स्किल्स आती हैं। सो इफ सम रिक्रूटर, जो रिक्रूटर्स का लिंक्डइन होता है, मतलब लाइक रिक्रूटर बिजनेस वाला, अगर वो लोग स्किल्स के बेसिस पे फिल्टर आउट कर रहे होते हैं कैंडिडेट्स, तो कहीं ना कहीं दिस विल लाइक मेक यू लैंड इन देयर लिस्ट। और अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे होते हो तो इट विल मेक योर टॉप अप्लीकेंट फॉर दैट रोल, बिकॉज इफ यू आर अप्लाइंग एंड यू हैव ऑल द रेलेवेंट स्किल्स दैट आर मेंशन फॉर दैट रोल, सो वो सारी वहाँ पर रिक्रूटर्स को शो हो जाती हैं, ठीक है? सो वो ऑटोमेटिकली आपको सॉर्ट करके ऊपर ले जाता है। सो वो सारी स्किल्स यहाँ पर ऐड करो, ठीक है? जब भी आप करो, ठीक है? सो यू शुड ऑलवेज ऐड इट और डिस्कार्ड, ओके? सो यहाँ पर ऐड नहीं किया, बट यहाँ देखो, यहाँ मैंने सारा स्किल्स अपना ऐड करके रखा है कि वेन एवर आई वॉज वर्किंग, तो मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, टेलविंड, आई वर्कड ऑन, वो हर जगह मैंने ऐड किया। मोर क्रेडिबिलिटी टू योर एक्सपीरियंस, सिंपली। एक्सपीरियंस सेक्शन आई गेस इससे ज़्यादा नहीं होता। सो अगर किसी को ना समझ, कॉपी कर लेना, उसको चैट जीपीटी को ले जाके दे देना, बोलना कि जैसा इन्होंने लिखा है वैसा मेरा लिख के दे दो, बट अपना एक्सपीरियंस डाल देना वहाँ पर, मेरा ही कॉपी मत करना एग्जैक्ट, ठीक है? दैट वुड वर्क। सो एक्सपीरियंस इज रैप्ड अप। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसका जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपका प्रोजेक्ट सेक्शन होता है, ठीक है? और ये बहुत ज़्यादा लोग ना ऐड भी नहीं करते हैं। सो ये प्रोजेक्ट एक जब आप अपनी प्रोफाइल पे आते हो तो ये ऐड अ प्रोफाइल सेक्शन, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, ठीक है? देयर इज अ ऑप्शन नेम ऐड अ प्रोफाइल सेक्शन, राइट? सो व्हेन यू ऐड अ प्रोफाइल सेक्शन, so you will get an option to add a project section. So when you add your project, so whatever projects you have built, whether they are freelance projects, whether they are your college projects, whether they are internship project that you did, वो सारी चीजें यहाँ पर लाके ऐड करो, ठीक है? क्या होता है ना, जब तुम लिंक्डइन पे ले जाके किसी प्रोजेक्ट को पोस्ट कर देते हो ना, तो वो तुमने एक बार पोस्ट किया, उसको एक बार रीच मिली, उस पर 100 200 300 जो भी लाइक आने आए, उसके बाद ना वो धीरे धीरे पोस्ट के साथ साथ नीचे चला जाता है। यू डू नॉट गेट टू सी इट अगेन एंड अगेन, राइट? बट जब रिक्रूटर आएगा प्रोफाइल पे और तुम्हारे पोस्ट देखेगा, तो मतलब पोस्ट तो देखेगा, बट वो सारे मतलब न्यूएस्ट पोस्ट होंगे। लिंक्डइन पे ऐसा कुछ एल्गोरिथम तो है नहीं कि हम जाके पुरानी पोस्ट देख सकते हैं, वो स्क्रॉल करके जाना पड़ता है, ठीक है? सो दे आर नॉट गोइंग टू स्क्रॉल दैट मच। सो उनको प्रोजेक्ट्स अगर दिखाने हैं तो यहाँ पर डालो, ठीक है? अब ये मैंने ये तो मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, ठीक है? कुछ भी बना दिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये मेरा खुद का प्रोजेक्ट है जो मैंने लाइक एज अ प्रोडक्ट डेवलप किया था, मार्केट में यूज भी किया था काफी टाइम। सो ये दोनों चीजें जो है मैंने बनाई थी। और जो लोग बोलते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए या रिक्रूटर, अभी एक क्वेश्चन आया था कि रिक्रूटर कैसे ज्यादा आपको वो करेगा। सी, मैं एक चीज बताता हूँ, अगर तुमको ना फिनटेक इंडस्ट्री, जैसे फाइनेंशियल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पसंद है कि हाँ मेरे को फाइनेंस इनोवेशन पसंद है, उसके अराउंड प्रोजेक्ट बनाओ। तुमको रेजर पे जैसी कंपनी टारगेट करनी है ना, तुम्हारे पास एक ना एक पेमेंट जैसा प्रोजेक्ट होना चाहिए, या एक ना एक इन्वेंट्री का प्रोजेक्ट होना चाहिए जहाँ तुम पेमेंट्स को प्रोसेस कर रहे हो, या बेसिकली यूपीआई बेस्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए। यूपीआई हैकाथॉन्स होते हैं, उनमें जाकर पार्टिसिपेट करो, यूपीआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाओ, ठीक है? इवन इफ यू नो, भारत पे जो एक कंपनी है, भारत पे स्टार्टेड एज अ यूपीआई हैकाथॉन प्रोजेक्ट ओनली। दैट वाज अ हैकाथॉन प्रोजेक्ट व्हिच इज लाइक अ मल्टी बिलियन डॉलर स्टार्टअप राइट नाउ, यूनिकॉर्न है, ठीक है? सो टारगेट की ओर, अगर तुमने कोई इंडस्ट्री टारगेट करके रखी है, या तुमको समझ में आता है कि हाँ मेरे को क्लाउड में ही जाना है, तो क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाओ जाके। और क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट्स में अगर तुम्हारे पास तुम्हारा दोस्त है तो उसने पूरा स्प्रिंग का एप्लीकेशन बना रखा है, स्प्रिंग बूट का, तुम उसको ले जाके डिप्लॉय करो, और उस पे ऑटोमेशंस लगाओ, उस पे CI/CD पाइपलाइन बनाओ, उसको डॉकराइज करो, ठीक है? डू वट एवर इट टेक्स, उस पे एक्सप्लोर गिटहब एक्शंस ऑन इट, एक्सप्लोर टूल्स लाइक जेनकिंस, डॉकर, एक्सप्लोर कुबरनेटिस अगर कर पा रहे हो तो। एज अ फ्रेशर अगर मल्टी कंटेनर सेटअप में काम कर पा रहे हो तो वो सारी चीज़ें करो। सो जब इस तरह की चीज़ें बनाओगे ना, तब पता चलेगा। अब जैसे ये देखो, ये जो प्रोजेक्ट था इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है? इसकी वजह से मेरे को एक ई कॉमर्स के इंटर्नशिप में, मतलब वो पूरा प्लेटफॉर्म मैंने उसके बाद स्क्रैच से बिल्ड किया था। आई वॉज देयर फाउंडिंग इंजीनियर फॉर फ्रंट एंड, राइट? सो इस प्रोजेक्ट ने मेरे को बहुत हेल्प किया था, क्योंकि मैंने इसको वहाँ जाके जब समझाया था तो उनको लगा था ओके यस, दिस गाय हैज बिल्ड समथिंग।
सो वैसी चीज़ होती है, ठीक है। वो करोगे तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, स्टैंड आउट करोगे बहुत ज़्यादा। इस तरह के रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाओ। प्रगति वॉज लाइक, जो मेरा प्रोजेक्ट था वो था कि बेसिकली जो शॉपिफाई जैसी चीज़ें करती हैं, तो वो शॉपिफाई लाइक हर शॉपकीपर नहीं बना सकता। तो मैंने छोटे शॉपकीपर्स जो हैं उनके लिए किया था कि एक जिनका दिन का लाइक 1000 या 2000 ट्रांजेक्शन्स होते हैं या 500 ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वैसे वाले उनको ग्लोबली ले जाने के लिए, ठीक है, या उनका एक वेब पेज डेवलप करने के लिए, वो अपनी इन्वेंट्री कैसे मैनेज करेंगे, वो अपने ऑर्डर्स कैसे मैनेज करेंगे। सो बहुत सारी ऐप्स थी। मेरा आइडिया सिंपल था कि क्या कहते हैं, इन्वेंट्री मैनेज करने की अलग ऐप आती है, पेमेंट्स मैनेज करने की अलग ऐप आती है, उधार मैनेज करने के लिए अलग से खाता बुक बना रखा है इन्होंने। मैंने सबको उठा के मर्ज कर दिया, सिंपल। और उसके साथ एक ई कॉमर्स पेज भी लॉन्च कर दिया। जस्ट 2-3 क्लिक्स में तुम्हारा ई कॉमर्स पेज लाइव चला जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड समथिंग थिंकिंग एंड इनोवेशन, कि तुमने 4 चीजें देखी, चारों अलग अलग हैं, तुमको लगा कि हाँ इसका एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तुमने उठा के मर्ज कर दिया, बन गया, ठीक है। इफ यू नो दिस प्रोजेक्ट रिलीफ इमरजेंसी सिस्टम, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे बने हैं, बट करेंटली एक स्टार्टअप है एम्बुला करके, तुम लाइक भुवनेश्वर बेस्ड स्टार्टअप ही है, वो काम कर रहे थे। तो ये रिलीफ वाला प्रोजेक्ट जो है एम्बुला के हैकेथॉन में से निकला था। मैंने उनके हैकेथॉन में पार्टिसिपेट किया था, एंड देन उनका पूरा बाइसेक्ट करके, इंटरसेक्ट किया, उनके पूरे प्रोजेक्ट को खोल के देखा। उसके बाद लाइक मैंने अपना डेवलप किया उसके सिस्टम को देख के। सो इस तरह की चीज़ें जब करोगे तब तुम्हारे हायरिंग के चांसेस बढ़ते हैं। और मैं प्रोजेक्ट सेक्शन समझा रहा था, तो प्रोजेक्ट सेक्शन में एज सिंपल एज दैट, प्रोजेक्ट का नाम डालना है। यहाँ पर भी तुम स्किल्स ऐड कर सकते हो। कोई मीडिया है, मतलब बेसिकली कुछ भी फोटोज वगैरह डालनी है, कब बनाया था, कैसे बनाया था, अपने दोस्तों को भी ऐड कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ठीक है। सो वट एवर यू वॉन्ट टू डू लाइक ऑन अ प्रोजेक्ट, यू कैन डू इट। सो प्रोजेक्ट सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्किल सेक्शन, स्किल सेक्शन अलग से भी ऐड कर सकते हो, वरना जितनी स्किल्स यहाँ पर आती जाएंगी स्किल्स में, राइट, ऑटोमेटिक आती जाएंगी। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रोजेक्ट सेक्शंस के बाद ये सर्टिफिकेशंस वाला है। जितने भी तुम्हारे लाइसेंस सर्टिफिकेशंस है, इनको यहाँ मेंशन कर सकते हो। यू शुड मेंशन इट इवन इफ यू लाइक गेन सर्टिफिकेशन। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पेशली फॉर द सोआ स्टूडेंट्स, देखो तुम लोग ना जब एजुकेशन करते हो ना, तो आधों ने क्या लिख रखा है, सोआ यूनिवर्सिटी कॉर्पोरेट रिलेशन। तुम लोग कॉर्पोरेट रिलेशन में पढ़ते हो क्या? बताना मेरे को एक बार, ठीक है। सो एक्चुअली जो है क्या कहते हैं, इफ यू आर मेंशनिंग योर कॉलेज, मेंशन इट प्रॉपरली, शिक्षा अनुसंधान यूनिवर्सिटी। आईटीआर भी मत डाला करो, सोवा डाला करो, ठीक है। वो कॉर्पोरेट रिलेशन लिख के बैठे हैं आधे लोग। जब तुम्हारे रिक्रूटर सर्च करने जाता है तो तुम लोगों के यूनिवर्सिटी में दिखाता ही नहीं है। उसका नुकसान पता है क्या होता है, कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो सोवा यूनिवर्सिटी लिख के बैठे हैं, तुम कॉर्पोरेट रिलेशन लिख के बैठे हो। जब तुम किसी जॉब पे अप्लाई कर रहे होगे और तुम्हारा कोई एलुमनाई उस कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहा हो, लिंक्डइन शो करता है कि यू आर ऑल लाइक द एलुमनाई फ्रॉम योर कॉलेज ऑलरेडी वर्क्स हियर। जब तुम कॉर्पोरेट रिलेशन लिख के बैठे हो तो वो शो नहीं करेगा, क्योंकि वो तो एसओए लिख के बैठा है, राइट। सो वहां पर तुम रेफरल, अगर जहां पर चांस बन रहा था वो भी तुम मिस आउट कर दोगे, तुमको पता ही नहीं है कि वहां पर तुम्हारा ऑलरेडी कोई एलुमनाई है। सो ऑलरेडी मतलब ये चीज मैंने देखी है, तो मैं बता रहा हूँ कि मेंशन करो सही यूनिवर्सिटी। अब मान लेते हैं तुम्हारी इंटर्नशिप लग गई, इंटर्नशिप लगने के बाद तुमने वहाँ काम भी कर लिया, या तुमने किसी प्रोफेसर के अंडर कोई प्रोजेक्ट कर लिया, तो अब क्रेडिबिलिटी बढ़ाने का एक और तरीका होता है रिकमेंडेशंस। सो यू कैन आस्क फॉर रिकमेंडेशन टू पीपल, जस्ट लाइक इफ आई आस्क फॉर, तुम रिकमेंडेशन दे भी सकते हो और ले भी सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपस में एक दोस्त दूसरे दोस्त को रिकमेंडेशन दे रहा है, ले रहा है। ऑफ कोर्स इट इज़ गुड, अगर तुमने किसी प्रोजेक्ट पे साथ में काम किया है, तुमने सच में कुछ बिल्ड किया, तो मैं बोलूँगा करो रिकमेंडेशन, आस्क करो और दो भी दूसरे को। बट अगर किसी सीनियर बंदे से तुमको रिकमेंडेशन मिलती है, जिसने तुमको मैनेज किया हो, या जो तुम्हारा मैनेजर रहा हो, या जो तुम्हारा टीचर या मेंटर रहा हो कहीं पर, ठीक है, उसकी अगर रिकमेंडेशन मिलती है, सो इट इज़ वेरी वेरी गुड। एंड इट इज़ रियली गुड इफ़ यू आस्क फॉर पीपल, लाइक आस्क टू पीपल, लाइक अगर तुम्हारे प्रोफेसर के साथ तुमने काम किया तो उनसे पूछ लो उनके कि सर आप रिकमेंड कर सकते हो मेरे को कि नहीं कर सकते, ठीक है। सो और अगर आप किसी स्टार्टअप वगैरह में काम करते हो या किसी कंपनी में जाके काम करते हो, तो जब आप वहाँ से निकलने वाले हो, तो आप वहाँ से डायरेक्टली उसके अपने मैनेजर को बोल सकते हो, या अपने जो टीममेट्स हैं उनको बोल सकते हो। सो मैंने जितने भी स्टार्टअप में काम किया है, जितने भी लाइक क्षितिज भैया इज लाइक आवर सुपर सीनियर, उनके साथ मैंने काम किया है। सो उन्होंने भी मेरे को रिकमेंडेशन दिया था, पहला रिकमेंडेशन उन्होंने दिया था मेरे को। सो उसके साथ मैंने जहाँ जहाँ भी काम किया, मैंने वहाँ के लोगों से रिकमेंडेशन मांगे हुए हैं, ठीक है। सो इट हेल्प्स यू बिल्ड योर प्रोफाइल, लाइक इट हेल्प्स यू रियली बिल्ड योर प्रोफाइल रियली गुड, ठीक है। क्योंकि
जब कोई 10 साल एक्सपीरियंस वाला या 16 साल एक्सपीरियंस वाला 15 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा तुम्हें रिकमेंड करता है, सो इट बिल्ड्स अ इमेज इन द मार्केट कि हाँ भाई ये बंदा काम करने लायक है एंड ही वर्क्स एक्चुअली वेल, ठीक है। सो आस्क फॉर रिकमेंडेशन, दैट्स वन मोर सेक्शन, ठीक है। और एक फीचर्ड सेक्शन होता है। अब फीचर्ड सेक्शन में क्या जाता है, जैसे मैं आज तुम लोगों की वर्कशॉप ले रहा हूँ, ठीक है। सो हो सकता है कि जो सीएन है, सीएन की तरफ से मुझे टैग करके एक पोस्ट की जाए जिसमें वो लोग लिखेंगे कि हाँ ठीक है, शशांक ने आके एक सेशन लिया। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक आई एम गेटिंग फीचर्ड समवेयर, सो आई विल राइट इट, ठीक है। अगर कोई कंपनी पोस्ट करती है, लाइक जैसे कोई कंपनी है, अगर तुमने उसको ज्वाइन किया तो उन्होंने पोस्ट किया दैट ही इज अवर न्यू ज्वाइनी एंड एवरीथिंग, सो वो भी तुम अपने फीचर्ड में डाल सकते हो। या किसी आर्टिकल ने तुम्हें मेंशन किया, या किसी ने तुम्हारी तारीफ कर दी, जो कि होता नहीं है, जनरली करते नहीं है लोग पब्लिकली प्लेटफॉर्म पर, बट कर दी किसी ने भूले भटके, तो वो भी तुम लाके डाल सकते हो यहाँ पर कि हाँ मतलब दैट्स अ फीचर्ड पोस्ट जो मैंने किया है, ठीक है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स, ये सारे सेक्शंस आपको सबसे ज्यादा बेस्ट बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर कुछ बटन्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने बुक अ सेशन करके बटन रखा है, यू कैन यहाँ पर इसको कस्टमाइज करके तुम अपने पोर्टफोलियो पर रिडायरेक्ट करा सकते हो, ठीक है। वो सारी चीजें। अच्छा, अब एक और ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। सो ये ट्रिक बेसिकली जॉब हंटिंग के लिए होती है, बट मैं अभी बता देता हूँ। सो राइट नाउ आई एम सिटिंग एट माई होम, ऑल द टाइम आई वॉज डूइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम उड़ीसा, बट मेरा लोकेशन जो है बेंगलुरु कर्नाटका रहता है। क्यों रहता है? बिकॉज आई वॉज टारगेटिंग द कंपनीज बेस्ड आउट ऑफ बेंगलुरु, राइट। सो इसलिए मैंने अपना ये रखा हुआ था, क्योंकि बेसिकली जो ऑन साइट रोल्स होते हैं तो कंपनी जनरली प्रेफर करती हैं जो कैंडिडेट्स वहाँ पर पहले से अवेलेबल हो। अब मैं उड़ीसा लिखूंगा, भुवनेश्वर लिखूंगा, तो थोड़ा मेरे लिए टफ हो जाता है कि वो मैं उन कंपनीज के हायरिंग लिस्ट में पहुंच पाऊँ, इसलिए मैंने बेंगलुरु लिख के रखा था। इससे कोई बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं होता है, ठीक है। बट द थिंग इज कि एक बार तुम शॉर्ट लिस्ट हो जाओ तो तुम लोकेशन को मैनेज कर सकते हो या डायरेक्टली बात कर सकते हो। सो एक बार शॉर्ट लिस्ट हो गए तो तुम रिक्रूटर से बात करके कि हाँ सर रिमोट दे दो या हाइब्रिड कर दो, ऐसा वैसा कर दो, तो you can just talk about it to your recruiter, right? But if even if you're like you are not getting even shortlisted, then that there is no point of keeping the location as the correct location, right? So you can do it, but like just make sure that if you are open to relocate, you are open to relocate, and you can like negotiate with the hiring manager that I want a remote role, वो तुम मैनेज कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल्सो अ ट्रिक दैट अपनी लोकेशन जो है वो तुम दूसरी डाल सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐड करने के सेक्शंस होते हैं, मैं कभी ऐड नहीं करता, बट तुमको अगर अपना रेज्यूमे पब्लिक करना है तो कर सकते हो। रेज्यूमे पब्लिक करने से थोड़ा सा स्कैम वगैरह भी होने लगता है, नंबर वगैरह पब्लिक हो जाता है, इसलिए मैं नहीं करता। बट देयर आर पीपल हु पब्लिक देयर रेज्यूमे नंबर हाइड करके, सो यू कैन डू दैट। उसके लिए भी यहाँ ऐड अ प्रोफाइल सेक्शन में आओगे तो बहुत सारे सेक्शंस यहाँ पर होते हैं, तुम यहाँ पर डाल सकते हो उसमें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। These are the most basic ones. So I guess LinkedIn is like complete from my side right now. ठीक है। ओके। किसी का कुछ तो क्वेश्चन है क्या है? 84% कर दो भाई मेंशन। 69% 12th में कुछ बढ़िया बोलते हैं तो तेरे को वैसे भी कॉलेज के सिलेक्शन क्राइटेरिया में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनी 75% प्लस करियर मांगती है। वो तो मैं मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी। मेंशन करने ना करने से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको बिना परसेंटेज देख के हायर करना है वो तुमको वैसे भी स्किल देख के हायर कर लेगा, प्रोजेक्ट्स अच्छे बने होंगे तो। जॉब हंटिंग के लिए, सो नाउ वी विल स्विच टू जॉब हंटिंग। सो जॉब हंटिंग कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिंक्डइन स्पेसिफिक जॉब हंटिंग बताता हूँ, ठीक है। लिंक्डइन स्पेसिफिक में कैसे करना है। तुम्हारा प्रोफाइल बन चुका है अभी तक, ठीक है। अब तुम्हारा प्रोफाइल बन गया, अब तुम ढूंढना चालू करोगे। ढूंढना कैसे चालू करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो जॉब चाहिए उस पर आ जाओ। सो मेरे को चाहिए यहाँ पर फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब चाहिए, ठीक। उसके बाद मेरे को जैसे मैंने सर्च किया तो मेरे को अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी चाहिए तो उसका कंपनी का फिल्टर होता है, या फिर तुम सीधे बुलियन सर्च लगा सकते हो, फ्रंट एंड डेवलपर एंड अमेजॉन। ये एंड इज अ बुलियन सर्च, यू कैन डायरेक्टली ऐड इट, एंड जब तुम इसको सर्च करोगे तो सिर्फ अमेजॉन से रिलेटेड फ्रंट एंड डेवलपर्स की जॉब आएंगी। सो लाइक मोस्टली फ्रंट एंड वाली सिर्फ अमेजॉन से रिलेटेड आ रही है, ठीक है। सो ये एंड लगा के तुम यहाँ पर कंपनी वाइज सॉर्ट भी कर सकते हो, बट आई प्रेफर द पर्टिकुलर कंपनी नेम, मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब क्या है ना, जो भी जॉब जैसे ये 1 वीक अगो आई है, ये भी 1 वीक अगो आई है, तो इस पे ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स पहले से बैठे हुए हैं, ठीक है। तुमको क्या चाहिए? तुमको फ्रेशर जॉब्स चाहिए जो अभी के अभी पोस्ट हुई हो, तो तुम डेट पोस्टेड पे आओगे, पास्ट 24 आवर्स पे लगाओगे, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम किसी भी कंपनी के जो इंजीनियर्स होते हैं, जैसे किसी कंपनी में कोई रोल आया और हम अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, और हम जाके एचआर को रीच आउट करते हैं बट रिप्लाई नहीं मिलता। देखो, एचआर और इंजीनियर्स आर द बिजीएस्ट पीपल। अगर कोई इंजीनियर रोल के लिए
आई है कंपनी, या तुम इंजीनियर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो सब लोग किसको रीच आउट कर रहे होंगे? इंजीनियर को रीच आउट कर रहे होंगे कि भाई मेरे को रेफर कर दे, ठीक है। बट रेफरल्स ऐसे काम नहीं करते, रेफरल्स कोई भी कर सकता है, ठीक है। अगर तुमको एमएस में इंजीनियर का रेफरल चाहिए तो वो तुम किसी सप्लाई चेन मैनेजर से भी मांग सकते हो, ठीक है। वो तुम किसी कंसल्टेंट से भी मांग सकते हो, और वो रेफर कर सकता है, और वो रेफरल भी उतना ही लाइक वे करता है, क्योंकि वो रेफरल पोर्टल पे जाता है, ठीक है। So if you are trying to reach out answers, try reaching out to some other people. Try reaching out to some founder office people. Try reaching out to graphic designers who are working there, the design people, or basically project managers, or any कंसल्टेंट जो भी हो वहाँ पर, उनको रीच नहीं है, ठीक है। वो लोग रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे रिप्लाई नहीं मिलता कई बार, ये मेरा पर्सनल लाइक वो है। सो दिस इज वन क्वेश्चन। ओके, के पास 24 आवर्स, लेट्स सी शो रिजल्ट्स। ओके, या इट्स वर्किंग। सो मैंने पास 24 आवर्स पे चेक किया है। सो देखो ऊपर ना यूआरएल चेंज हो गया है, यहाँ पर एक यूआरएल चेंज हो गया, यहाँ पर 3 आवर्स 9 आवर्स, बट ये 3 आवर्स 9 आवर्स पे भी तुम देख रहे हो देर आर लॉट ऑफ पीपल, देर आर लॉट ऑफ पीपल इन दिस 3 and 9 आवर्स जॉब्स। तो तुमको क्या करना है, ये जो ये 86,400 लिख के आ रहा है ना ऊपर स्क्रीन पे, 86,400 is basically the number of seconds in a day. So you just change it to 3600. Now this is a 1 hour search. पास्ट 1 आवर में जितनी भी फ्रंट एंड डेवलपर की अमेजोन में जॉब्स निकली होंगी वो तुमको निकाल के दे देगा, ठीक है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ टाइनी हैक विच यू कैन यूज, जिसमें तुम 1 घंटे में आई हुई, 2 घंटे में आई हुई या 5 घंटे में आई हुई सारी जॉब्स निकाल सकते हो, और उनमें सबसे पहले अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज इफ यू आर लाइक अप्लाइंग फर्स्ट, अगर तुम पहले अप्लाई करते हो तो तुमको जॉब रोल भी पता चल जाता है, उसके बाद तुम उस कंपनी में लोगों को भी रीच आउट कर सकते हो सबसे पहले उस रोल के लिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब एप्लीकेशन का, जैसे जो जॉब फाइंडिंग वाला, नाउ वी आर डिस्कसिंग द जॉब, जैसे देखो 58 मिनट्स पहले, 28 मिनट्स पहले, 43 मिनट्स पहले आई है, ठीक है। सो ये 1 आवर में निकली जॉब्स है, ठीक है। सो इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करते रहो, ठीक है, और तुमको जॉब्स मिलती जाएंगी। अब जब इन जॉब्स पे तुम अप्लाई करने जाते हो तो इनके इनके एक सबसे इनके कंपनी पेजेस पे जाओ, कंपनी पेजेस पे जाओ, वहां पर लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। हर कंपनी में एटलीस्ट 10 से 15 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। जब वो एक्सेप्ट कर लें, एक्सेप्ट करने के बाद तुमको क्या करना है, उनको कोल्ड डीएम करना है, ठीक है। यू हैव टू कोल्ड डीएम देम। कोल्ड डीएम इज बेसिकली लाइक एक छोटा सा डीएम लिखना है उनको कि हाय XYZ, hope you are doing well. I just found a job on LinkedIn in your company, this position. I am interested in it. I hold this skill set. Here is my resume. पूरा स्किल सेट लिख के, रेज्यूमर लिख के उसको भेज देना है, ठीक है। टू मेक श्योर कि देयर लिंक्डइन, ठीक है। तो लिंक्डइन के लिए मतलब यू कैन फाइंड आउट देयर ईमेल्स। तो ईमेल्स के लिए एक टूल होता है, वो मैं बता दूंगा टूल्स एंड रिसोर्सेज में। देयर इज अ ईमेल एक्सटेंशन काइंड ऑफ ईमेल फाइंडर, ये होता है ईमेल फाइंडर बाय पाई लीड्स। आई यूज दिस वन। बहुत सारे ईमेल फाइंडर्स आते हैं जो तुम्हारे लिए काम यूज कर लेना। सो व्हेन यू गो टू समवन्स प्रोफाइल एंड एक्टिवेट दिस एक्सटेंशन, अगर उनका ईमेल या कंपनी ईमेल वहां पर पड़ा हुआ होगा, या नंबर भी अगर पड़ा हुआ होगा, फोन नंबर उन्होंने वेरीफाई किया होगा, तो वो निकाल के दे देता है। सो एक बार उनका फोन नंबर, या डायरेक्टली कॉल मत कर देना, बट हाँ टेक्स्ट कर सकते हो, उनको ईमेल कर सकते हो, यू कैन रीच आउट टू दोज पीपल, ठीक है। सो दीज आर द जॉब फाइंडिंग ट्रिक्स एंड रीचिंग आउट ट्रिक्स, कि तुम सबसे पहले लिंक्डइन पे रीच आउट कैसे कर पाते हो लोगों को, ठीक है। ये एक चीज होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी पोस्ट आती है लिंक्डइन की। सो यू कैन फॉलो अ लॉट ऑफ पीपल, कि जो कंपनी के टॉप इंजीनियर्स हैं, जो SD1s हैं, SD2s हैं, उन सबको फॉलो करो। वो रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं चीज़ों के बारे में, ओपन रोल्स के बारे में। जिस भी कंपनी में तुम इंटरेस्टेड हो उनका पेज फॉलो कर लो। अगर वो कंपनी पोस्ट करती है या वो स्टार्टअप पोस्ट करता है तो वो भी तुमको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। एंड देन यू कैन रीच आउट टू देयर पीपल। आई हैव लैंडेड लाइक 2 इंटर्नशिप्स जस्ट लाइक दैट, बिकॉज मैंने किसी कंपनी का पोस्ट देखा, उसमें उनके को फाउंडर का या रिक्रूटर का ईमेल था, मैंने उनको जस्ट एक कोल्ड डीएम ड्रॉप किया एंड इट वर्क फॉर मी, राइट। इट जस्ट सिंपली वर्क फॉर मी। सो वो चीज़ तुम कर सकते हो। उसके बाद कोल्ड डीएम्स डालो। कोल्ड डीएम्स में लाइक यू कैन राइट अ कस्टम कोल्ड डीएम लिख सकते हो, चैट जीपीटी को बोल सकते हो कोल्ड डीएम लिखने के लिए, दैट विल वर्क फॉर यू। Apart from that, you can follow engineers, you can follow founders, you can follow different HRs. They post regularly. उनकी पोस्ट को फॉलो करो, उनके ईमेल्स वहाँ पर मेंशन्ड होते हैं, कंपनी ईमेल्स, उन पे मेल कर दो। जनरली जॉब मार्केट इतना टफ होता है कि तुमको 100 से 200 ईमेल भेजने पड़ते हैं, तब जाके 10-12 का रिप्लाई आता है। एंड हमारे टाइम पे भी हमने वो चीज़ कर रखी है। आई रिमेंबर दिन के 50-60 ईमेल्स में भेज। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स।
सो दिस वाज लाइक सम जॉब हंटिंग टेक्निक्स. कोल्ड डीएम्स के बारे में लाइक कोई पूछ रहा था. सो कोल्ड डीएम्स लाइक आई कैन शो यू एन एग्जांपल ऑफ वन which landed me a role. Just a second. So this is the current organization I was working at, Pravi. This is a fintech company and इनका भी वैसे ही post आया था. So I was following this guy Krishna Mohan. He is a 60 and he was the head of director of engineering at Bharat Pay basically Goldman. So you can just see ये एक सिंपल सा कोल्ड मेल लिखा था मैंने और कुछ नहीं किया था कि मुझे क्या आता है, व्हाट आई डू, मेरा रेज्यूमे, एंड आई जस्ट सेंट इट एंड आई गॉट शॉर्टलिस्टेड, राइट. और उसके बाद द प्रोसेस गोज ऑन, राइट. सो इस तरह का कोल्ड मेल यू कैन राइट. यू कैन जस्ट टेल ChatGPT कि क्या होता है. जस्ट सिंपल है, कुछ नहीं है. मैं क्या करता हूँ मैंने वो लिखा है बस. अगर कोई प्रोजेक्ट है तो मेंशन कर दो, पोर्टफोलियो है तो मेंशन कर दो. दिस इज लाइक कोल्ड मेल वर्क्स. मैंने टेम्पलेट्स वगैरह भी बना के लाइक पिछली बार शेयर किए थे. सो दे आर ऑन माय टॉपमेट प्रोफाइल इफ यू वांट. दिस इज द कोल्ड डीएम टेम्पलेट आई फॉलो. ठीक है. जनरली मेरा यही रहता है, अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है किसी कंपनी की तो मैं उसके हिसाब से अपना ChatGPT को बोल के और थोड़ा खुद एडिट करके करवा लेता हूँ. यूज AI एज मच एज यू कैन. मतलब जितना भी तुम कोल्ड डीएम वगैरह या रिज्यूमे के कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करवाने हैं, कुछ भी करना है, दबा के यूज करो. सब लोग कर रहे हैं. ठीक है. दैट्स वन थिंग. ठीक है. उसके अलावा सो दिस वाज ऑल अबाउट द जॉब हंटिंग ऑन लिंक्डइन स्पेसिफिकली. बट अपार्ट फ्रॉम लिंक्डइन, लाइक यहाँ से लाइक आई टोल्ड यू कि हाउ टू लैंड अ जॉब. पहले सबसे उनको जॉब्स को फाइंड कैसे करना है. तुमको पोस्ट से मिल जाएंगे, तुमको आवरली सर्च करने से मिल जाएंगे. उनके ईमेल्स फाइंड करने के लिए एक्सटेंशन यूज करो, वहां से उनको कोल्ड डीएम करो, कोल्ड मेल करो और उसके बाद फॉलो अप करते रहो. तो लिंक्डइन के लिए ये वाला पूरा फ्रेमवर्क काम कर जाता है. ठीक है. ठीक है. तो ये वाली सारी चीजें हमने क्रिएट कर ली. लिंक्डइन जॉब्स कैसे निकालते हैं, अर्ली अप्लाई कैसे करते हैं, रेफरल कैसे लेना है, रेफरल लेने के लिए कोल्ड डीएम्स होते हैं. कोई बोल रहा था कि रेफरल को कन्वर्ट कैसे करना है. भाई अगर तेरी प्रोफाइल अच्छी होगी ना, मैंने बताया ना लिंक्डइन का प्रोफाइल अच्छा है, तेरा अगर रेज्यूमे जो तूने भेजा है वो बहुत ज्यादा अच्छा है. ठीक है. और तूने ढंग से मतलब जो वो लिंक्डइन पे ना वो वाली हरकत बिल्कुल मत करना कि किसी इंजीनियर को तुम मैसेज कर रहे हो, पहले लिख रहे हो हाय, फिर उसके हेलो का वेट कर रहे हो कि वो हेलो लिखेगा फिर मैं अपनी बात कहूंगा. वहां पर ना वो गेसिंग गेम नहीं चल रहा होता है. तुमको एक डीएम क्राफ्ट करना है, उसमें सब कुछ लिखना है, उसके बाद सेंड करना है. वो आदमी बिजी है, वो तुम्हारे हाय और हेलो का वेट नहीं करेगा. पर्सनली मैंने भी ये चीज बीच में कर रखी थी कि मेरे को कोई हाय हेलो भेजता था तो मैं उसको रिप्लाई भी नहीं करता था. ठीक है. सो वो वाली चीज है. लेकिन मतलब वो चीजें जो है थोड़ा ध्यान में रखो कि लिंक्डइन इज नॉट फॉर हाई हेलो एंड स्मॉल टॉक्स. तुमको जो चाहिए वो लिख के भेजो. अगर तुमको बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है सामने वाले की हाई हेलो पूछना ही है तो नीचे वो हाई हेलो के साथ बीच में एक वो डाल देना, होप यू आर डूइंग वेल, और उसके बाद पूरा लिख के भेज दो. एक बार में लिख के भेजना जो भी भेजना है. ठीक है. क्योंकि दो दैट गाय इज नॉट रिप्लाइंग यू बैक एंड वो 10-12 दिन का नहीं चलने वाला वहां पर कि पहले चैट करेंगे फिर रेफरल मांगेंगे. वो सब नहीं चलता. डायरेक्ट रेफरल मांगो. अगर तुम्हारा प्रोफाइल अच्छा होगा तो वो खुद रेफर कर देगा. उनको रेफर करने का बोनस मिलता है, रेफरल बोनस. ठीक है. वो कोई एहसान नहीं कर रहे होते तुमको रेफर करके. सो ये चीज तुमको पता होनी चाहिए. ठीक है. सो दिस इज वन थिंग. तो ये सारी चीजें हम लोगों ने काइंड ऑफ कर ली. जो ये लिटिल बिट ऑफ क्रिएटिविटी लिखा है, इसका मैं थोड़ा सा तुम लोगों को देखो, ये थोड़ा सा अनएथिकल मैं बोलता हूँ है, लेकिन अगर ट्राई करना है तो कर लो. ठीक है. वन थिंग इज कि अब जैसे कई सारे लोग होते हैं ना, वो और मैंने लिख के भेजा सब्जेक्ट लाइन में एप्लीकेशन फॉर फ्रंट एंड इंटर्न, एप्लीकेशन फॉर बैक एंड इंटर्न, खोल के देखेंगे भी नहीं. ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं लिखता हूँ आई फाउंड अ प्रोडक्ट इन योर आई फाउंड अ बग इन योर प्रोडक्ट. ठीक है. या योर दिस फीचर ब्रेक्स ऑन योर द वेबसाइट. ठीक है. मैं ऐसे रैंडम क्रिएटिविटी चीजें करके भेज देता हूँ. अब कोई ये मत करना कि सब्जेक्ट लाइन में गाली लिख के भेज रहा है कि हाँ गाली दिखेगा तो वो खोलेगा ही, क्योंकि ऐसा भी ट्राई किया हुआ है लोगों ने. आई नो पीपल हु हैव ट्राइड दिस वियर्ड थिंग और रिटर्न में उनको ऑफ कोर्स गालियां पड़ी है. सो ये चीजें मत करना. बट हाँ, अगर तुम किसी वेबसाइट पे अप्लाई करो, किसी कंपनी पे अप्लाई करो और उनकी वेबसाइट पे जाके देखते हो कि कोई छोटा सा भी बग है, वो तुम कर दो. ठीक है. वो कर दो जाके कि हाँ देयर इज अ बग ऑन योर वेबसाइट, वो हेडलाइन में डाल दो. उसके बाद वो छोटा सा बग रिपोर्ट कर दो और उसके बाद अपना पूरा विजिटिंग कार्ड वहां पर लगा दो, चिपका दो कि हाँ अगर मैं वहां पर होता, तुम्हारे इंजीनियर्स ने ये काम ठीक से नहीं किया, मैं होता तो मैं कर देता. ठीक है. What not to do while giving an interview? You should not keep your mouth shut. That's the first thing, right? You should interact with the guy in your interview. वहाँ चुप नहीं बैठना होता है. वहाँ पर जल्दी किसी चीज के लिए लाइक ये नहीं बोलना होता कि मेरे को कंप्लीटली नहीं आता. अगर कुछ आता है तो उसके आसपास की चीजें बताओ, नहीं आता तो भी उसके आसपास की चीजें बताओ. लाइक काइंड ऑफ ट्राई करो कि हर चीज आंसर कर लो. ठीक है. एंड इट्स अ टू वे कॉन्वर्सेशन ऑलवेज. इंटरव्यू इज अ टू वे कॉन्वर्सेशन, रिमेंबर दैट गाइज.
बहुत लोग बस जाके सोचते हैं कि वो क्वेश्चन पूछेगा मैं आंसर दूंगा, वो नहीं होता है। इट्स अ टू वे कॉन्वो। यू ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन पूछा है तो तुम उसके लिए क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हो। इवन इन माई MS इंटरव्यू द गाय वाज लाइक टेकिंग माई इंटरव्यू, ही वाज लाइक 6 to 7 years senior than me, and he asked me a question. It was a situation based question, and I asked him, I reverted with a question कि okay please define the correct situation, मेरे को पूरा एक सिनेरियो डिफाइन करके दीजिए, this is a very generic scenario and I cannot form anything out of it, either it will be an assumption only, that would not be a like a little bit close to something. Should I keep extra languages even if data science? ओके, I'll entertain this thing later. So ये क्रिएटिविटी वाली चीज़ है, ये भी खुद हैंडल कर लेना, बस कुछ अनसर्ड मत लिखना यार, देखो ठीक है, वरना बाद में बोलोगे कि मैंने सिखाया था। मैंने कुछ ऐसा नहीं सिखाया, फॉरगेट इट गाइस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, टूल्स एंड रिसोर्सेज। बेस्ट थिंग चैट जीपीटी फॉर कस्टम मैसेजेस, कवर लेटर्स, डीएम, ईमेल, जेडी एनालिसिस, इंटरव्यू प्रिपरेशन, सब चीज़ के लिए यूज़ करो, हर चीज़ के लिए यूज़ करो, मैं बोल रहा हूँ ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए तुमको यूज़ करना है करो। उसको एक प्रॉम्प्ट दो, यू आर अ सीनियर रिक्रूटर, यू हैव बीन रिक्रूटिंग इट फॉर लाइक 10 to 15 years, यू आर एक्सपर्ट इन जॉब डिस्क्रिप्शंस एनालिसिस, यू आर एक्सपर्ट इन रेज्यूमे एनालिसिस, एंड जो भी तुमको लगता है कि तुम्हें रिक्वायर्ड है उसको बोल दो। उसके बाद अपना रेज्यूमे पकड़ा दो, वो तुमको सारा फ्लॉज बता देगा अपने रेज्यूमे के, तुम्हारी लिंक्डइन की प्रोफाइल की हेडलाइन लिख के दे देगा, फ्रेमवर्क मैंने बता ही दिया, उसको फ्रेमवर्क दे दोगे वो भी करके लिख के दे देगा, ठीक है। वो सारी चीजें तो वो सब करके दे देगा, ठीक है। तो उसको दबा के यूज करो। इवन दैट मैं अपने फाइनल ईयर और लाइक 6th 7th और 8th सेमेस्टर के एग्जाम्स में पूरा चैट जीपीटी यूज करके पढ़ रहा था, लाइक कंप्लीट चैट जीपीटी, पूरा पूरा पीडीएफ उठा के दिया उसको, भाई समझा मेरे को नहीं समझ में आ रहा सेमीकंडक्टर में, आई एम नॉट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, नहीं समझ में आ रहा सेमीकंडक्टर, तो उसने पूरा समझाया, आई स्कोर्ड ओ ग्रेड इन सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सो वो बात है, तो उसको जो बोलोगे वो करेगा, उसको स्मार्टली यूज करो। परप्लेक्सिटी तुम लोगों को मिला हुआ है, लाइक एयरटेल वालों को मिल गया परप्लेक्सिटी का दबा के यूज करो। मैंने अपने टाइम पे बहुत ज्यादा यूज किया परप्लेक्सिटी, आज भी करता हूँ, ठीक है। सो जस्ट यूज इट। ईमेल फाइंडर बाय पाइपाई लीड्स, जितना ईमेल फाइंड करना है कर डालो, इससे 50 की लिमिट मिलती है पर मंथ, 50 बहुत होते हैं, ठीक है। 50 लोगों में तुम रीच आउट कर लोगे आराम से, इफ यू रीच आउट गुड पीपल। 2-3 आईडी से करो, तुमको 150 की लिमिट मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक रॉकेट रीच करके भी होता है, रॉकेट रीच नाम से होता है, यू कैन लाइक नोट करके रख लो, मैंने ऐड नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद ना कुछ और प्लेटफॉर्म्स है, फटाफट बताता हूँ उनके बारे में। वेल फाउंड को पहले एंजल लिस्ट बोलते थे, वेल फाउंड इज स्पेसिफिकली फॉर स्टार्टअप्स, ठीक है। अगर तुमको स्टार्टअप्स में अप्लाई करना है तुम वेल फाउंड पे जाओ, वेल फाउंड पे तुमको भर भर के स्टार्टअप्स मिलेंगे। उसमें फंडेड स्टार्टअप्स भी हैं, न्यू एज स्टार्टअप्स भी हैं। हो सकता है तुम अगर कोडिंग में अच्छे हो, तुम्हारा डेवलपमेंट में अच्छे हो, तो तुमको फाउंडिंग इंजीनियर तक का रोल मिल सकता है वहाँ पर, या फाउंडिंग इंटर्न का भी मिल सकता है, ठीक है। तो वैसी वाली चीज़ है, ठीक है। वन दैट थिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट वाई कॉम्बिनेटर इज फुल ऑफ स्टार्टअप्स, ठीक है, कंप्लीट फुल ऑफ स्टार्टअप्स। वाई कॉम्बिनेटर के सारे स्टार्टअप्स फंडेड होते हैं। यहाँ की अगर तुम कोई भी इंटर्न क्रैक करते हो तो तुमको दूसरी कोई इंटर्न क्रैक करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, और लाइक दे विल गिव यू दैट काइंड ऑफ मनी विच यू विल लाइक, तुम अपने कॉलेज की फीस भी खुद से भर दोगे, ठीक है। तो वाई कॉम्बिनेटर के स्टार्ट, या दे आर हार्ड टू क्रैक, दे आर रियली हार्ड टू क्रैक, यू नीड टू लाइक रेज योर बार टू दैट लेवल, बट वाई कॉम्बिनेटर पे अप्लाई करते रहो, क्या पता किस दिन लक काम कर जाए। देन देयर इज कंपनी कॉल्ड, देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड acquire.com। acquire.com का क्या सीन है ना कि यहाँ पर वो स्टार्टअप्स लिस्टेड होते हैं जो एक्वायर कर लिए हैं किसी कंपनी ने। तो अगर कोई कंपनी किसी स्टार्टअप को एक्वायर करती है तो वहाँ पर नए जॉब रोल्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो वहां से तुम देख सकते हो कि कौन सा स्टार्टअप एक्वायर हुआ है और उस कंपनी में जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज लाइक अ श्योर शॉर्ट थिंग, जहाँ पर तुमको पता चलेगा कि हाँ ये कंपनी ने अभी किसी ने एक्वायर किया है, सो दे आर हायरिंग न्यू पीपल एंड यू जस्ट गो एंड अप्लाई। यहाँ पर तुमको ये भी पता चलता है कि कौन सी कंपनियां हैं जो लाइक बिक रही हैं, सो उन्होंने क्या बनाया था प्रोडक्ट जो बिक गया किसी और कंपनी को, तो तुम अपने प्रोजेक्ट्स भी उसी के अराउंड बना सकते हो। देन देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड क्रंच बेस पे तुम्हारी फंडिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कंपनीज की, जितने भी स्टार्टअप्स और जितनी भी कंपनीज में फंडिंग हो रही है वो सारा क्रंच बेस पे होता है। जैसे ही किसी स्टार्टअप में फंडिंग होती है वहां पर नए रोल्स आ जाते हैं, तो क्रंच बेस को फॉलो करो, देखो कौन से स्टार्टअप की सीड ए, सीड बी या कोई भी फंडिंग हुई है, ठीक है। वहां पर जाके फॉलो करो, वहां से तुमको डेटा मिल जाएगा, उनमें कंपनीज में जाके अप्लाई करते रहो। देन देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड hiring.cafe, दिस इज माय फेवरेट वन, नो बुलशिट वेबसाइट। यहाँ पर कुछ ये एड्स वैड्स कुछ नहीं, डायरेक्ट से लाइक जॉब्स होती हैं और जॉब्स में सीधे अप्लाई बटन होता है जो तुमको उनके करियर पेज पे लेके जाता है, एंड टन्स ऑफ फिल्टर होते हैं यहाँ पर, इतने सारे फिल्टर हैं कि तुम अपनी पूरी सर्च क्वेरी ऑप्टिमाइज कर सकते हो यहाँ पर बैठ के। सो hiring.cafe करके वेबसाइट है, इस पे चले जाओ। रिमोट ओके एंड वी वर्क रिमोटली, दीज आर फॉर
पर्टिकुलर रिमोट जॉब्स, यहाँ पर इंटर्नशिप वगैरह अच्छी हैं. फॉरेन रोल्स होते हैं जनरली आउट ऑफ कंट्री, इंडियन कंपनीज कम देखा हूँ मैं यहाँ पर. But yeah, if you are interested, you can apply. So these are particular like my favorite companies where I like do. Uh, so yeah, that's all from like my side. Uh, इतना तो जॉब हंटिंग के लिए काफ़ी है आई गेस. इतना अगर आप लोग कर लेते हो ना तो आई एम श्योर लाइक कि 2 से 3 महीने या 4 महीने में कहीं ना कोई रोल क्रैक हो सकता है. ठीक है. All right, it's time for the part when you all have been waiting for, the spotlight question segment. Basically, we have chosen a few frequently asked ones, and Shashank Bhaiya over here will answer all of them first. यू कैन शूट योर क्वेश्चंस राइट नाउ, जिसको जो डाउट थे यार, जो भी पूछ रहा था, जिसको भी सेशन में मेरा कोई पहला डाउट है. क्वेश्चन है कि how do I make my LinkedIn stand out if I don't have work experience yet? वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, प्रोजेक्ट्स बनाओ सबसे पहले. ठीक है. हम्म. स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स. ठीक है. अगर तुमको लिंक्डइन मतलब जैसे स्टैंड आउट कराना है, तो जो मैंने हेडलाइन वाला चीज़ बताया और अबाउट वाला बताया, पहले तो उसको लिखो. उसके बाद रेगुलरली पोस्ट करना शुरू करो. सो इट इज़ जस्ट लाइक कि अगर तुम वेब डेवलपमेंट डोमेन में जा रहे हो, तो वेब डेवलपमेंट में जो भी तुम सीख रहे हो या जो भी तुम प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, कोई नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर कर रहे हो, करेंट मतलब कंटिन्यूअसली उसके साथ उसके बारे में पोस्ट करते रहो कि लाइक आई डेवलप्ड दिस टुडे, आई लर्नड अबाउट दिस पैकेज टुडे, आई बिल्ड दिस सेक्शन व्हिच वर्क्स लाइक दैट एंड आई फेस दिस प्रॉब्लम, जिसका सॉल्यूशन मैंने ऐसा निकाला, इसके और बेटर सॉल्यूशंस हो सकते हैं कि नहीं. सो वो उस तरह की चीज़ें जब तुम पोस्ट करोगे तो तुम्हारा एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट होता है, एक इमेज क्रिएट होती है तुम्हारे फॉलोअर्स या जो भी तुम्हारे प्रोफाइल दिखते हैं उनके दिमाग में कि यार दिस गाय इज एक्चुअली ऑल अबाउट बेसिकली दिस दिस पर्टिकुलर डोमेन. अगर कोई एंड्रॉइड के बारे में कंटिन्यूसली 6 महीने से पोस्ट कर रहा है तो पीपल टेक हिम एज एंड्रॉइड डेवलपर. जैसे अगर तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइवर का नाम ले तो स्ट्राइवर के नाम से डीएसए लिंक हो जाता है, राइट, कि स्ट्राइवर का मतलब डीएसए है. या कोई कुणाल कुशवाहा बोलता है तो या ऑल अबाउट लाइक क्लाउड एंड सीबो, कुणाल कुशवाहा जावा जावा का जो कोर्स है उसका. सो ऐसे चीजें हैं. कोई अक्षय सैनी बोलता है तो जावा स्क्रिप्ट दिमाग में आता है. सो इन्होंने अपना पर्सनल ब्रांड बनाया है. सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर तुमको ऐसे स्टैंड आउट करना है तो पहली बात प्रोजेक्ट्स बनाओ, कंटिन्यूसली उनके बारे में पोस्ट करो, तुम्हारा प्रोफाइल ऑटोमेटिक स्टैंड आउट होगा, तुमको फॉलोवर्स मिलेंगे. और सेकेंडली लाइक कोई भी रिक्रूटर आता है तो वो देखेगा कि हाँ तुम रेगुलरली इस चीज पे वर्क कर रहे हो. और उसके बाद ये सब करने के बाद इफ यू क्रैक एंड समबडी सम इंटर्न और समथिंग लाइक दैट, सो वो भी लाइक वो तो फिर तुम्हारे एक्सपीरियंस में आ ही जाएगा. सो जस्ट डू इट लाइक दिस. So moving on to the next question. What are the top three things you did on LinkedIn that helped in placements? This was asked by Bhageshri Panda from batch 2026. या सो इट वाज लाइक सबसे ज़्यादा तो मैंने यार अप्लाइंग करी है. ठीक है. बहुत अप्लाई किया है, बहुत ज़्यादा अप्लाई किया है टू बी ऑनेस्ट. लाइक सेकंड थर्ड ईयर में मेरा मेल जो होता था वो लाइक सेंट वाला जो सेक्शन है वो पूरा भरा रहता था स्कूल डीएम से. अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज फिल्ड विद दिस लिंक्डइन डीएम्स के asking out to like co-founders that whether there is a role in their company, because I knew that MNCs may not hire that frequently या वहाँ पर इंटर्न उतना जल्दी क्रैक नहीं होगा, लेकिन एक स्टार्टअप में जल्दी क्रैक हो जाएगा. तो मैं प्राइमरीली स्टार्टअप्स को टारगेट करता था so that I can get an early experience which would help in cracking an MNC. वो वाली चीज़ है. And that also did. I cracked a project management intern and that later helped me for a project management role. So वो वाली चीज़ है. तो सबसे पहले तो अप्लाई करो जितना भी, मतलब मैंने वो बताया कि हाउ टू अप्लाई ऑन द रोल, फाइंड द जॉब, अप्लाई. उसके बाद बिल्डिंग इन पब्लिक लाइक मैं ऑलमोस्ट शुरू से ही फॉलो कर रहा हूँ. मैं उतना ज़्यादा वैसे लाइक आई एम नॉट काइंड ऑफ अ सीरियल कंटेंट राइटर और पोस्टर और समथिंग, तो मैं लिंक्डइन को उतना अपडेट नहीं रखता था पहले. लेकिन उसके बाद जब मैंने कंटिन्यूसली काम करना शुरू किया तो मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता था. इवन एफ एम बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट मैं उसका एक स्नीक पिक डाल देता था. या मैं कोई फीचर बना रहा हूँ, जैसे मैंने एक इनवॉइसिंग का फीचर बनाया जिसमें मैं इनवॉइस क्रिएट करके डाउनलोड करवाता हूँ, तो ऑटोमेटिक इनवॉइसिंग होती है, तो वो फीचर बनाया किसी प्रोजेक्ट में तो वो डाल दिया. या मैंने कोई सेशन लिया या कोई सेशन अटेंड किया बेसिकली जो कि बहुत ज़्यादा वर्दी था, तो उसके की पॉइंट्स लिख के डाल दिए. इस तरह की चीज़ें. तो बेसिकली वही अपना पर्सनल ब्रांड थोड़ा सा क्रिएट किया मैंने कि आई एम ऑल अबाउट, बिकॉज आई वॉज अ डेवलपर, आई वॉज लुकिंग फॉर डेवलपर रोल्स, सो आई क्रिएटेड माई सेल्फ a brand which looks like more towards a developer, and I got an appreciation from a very senior guy also who looked at my LinkedIn and said okay you have like 300 कैंडिडेट्स थे, 300 में तुमने लिंक्डइन काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है, लाइक काफ़ी चीज़ें सही से डाली हुई हैं. सो वो चीज़ है, तो वो अप्रिशिएशन भी कहीं ना कहीं मिलती है. तो फर्स्ट थिंग इज कि अप्लाई करो, सेकंड थिंग इज कि उसको प्रॉपर मेंटेन करो, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो, एंड थर्ड थिंग इज
बिल्ड योर कनेक्शंस, बहुत ज़्यादा कनेक्ट। तुमको जिस भी कंपनी में इंटरेस्ट है उसके कंपनी के कम से कम 10 से 15 लोगों को हर महीने रिक्वेस्ट डालते रहो कनेक्शन की। कई वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर 2-4 लोग एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसके बाद ऑलरेडी उनके में शो करने लगता है कि म्यूचुअल कनेक्शंस में उनके फ्रेंड्स हैं, तो उसके बाद वो तुम्हारे कनेक्शंस बढ़ते जाएंगे। सी होता क्या है ना कि बच्चे आपस में कनेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। तुम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से कनेक्ट कर रहे हो, तुम्हारे कनेक्शंस बढ़ते चले जा रहे हैं, दैट डज नॉट वर्क्स। तो वो लोग तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे पीयर्स हैं, तो उनसे भी कनेक्ट करो। ये नहीं बोल रहा हूँ उनसे कनेक्ट मत करो, करो उनसे कनेक्ट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस भी कंपनी को तुम टारगेट करते हो या जो भी कंपनी तुमको दिखती है कि हाँ ये अच्छी कंपनी है, इसमें मैंने अप्लाई किया, उसके कम से कम 15-20 लोगों को कर दो। सो दीज आर द टॉप 3 थिंग्स यू शुड फॉलो। All right, moving on to the next question. Bhaiya, is a LinkedIn profile really important for placements and internships? नहीं नहीं, इसमें ये भी चीज़ है। सी लिंक्डइन प्रोफाइल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स काइंड ऑफ योर शॉप, ठीक है। इट्स अ शॉप वेयर रिक्रूटर्स कम टू बाय Hmm. योर स्किल्स, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट हैव अ शॉप, वेयर वुड यू सेल? देयर आर अदर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। कुछ लोग ट्विटर मेंटेन करते हैं, टेक ट्विटर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यू कैन लैंड इंटर्नशिप्स फ्रॉम ट्विटर ऑल्सो। बट जो भी है तुमको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर तुम लिंक्डइन पे भी रेगुलरली पोस्ट करोगे, चांसेस हैं। तुम ट्विटर पे भी रेगुलरली पोस्ट करोगे, वहां से भी चांसेस हैं। You have to maintain one of the things or two of the things, whatever you feel like. But yeah, it is really important. It is important actually. I am a student and I want to build a strong online presence for placements. Where should I start? स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस फॉर प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स और ऑनलाइन प्रेजेंस का वैसे तो कोई खास रिलेशन है नहीं। प्लेसमेंट्स में तो तुम्हारे कंपनी में ही कॉलेज आ रहा, मतलब सॉरी कॉलेज में कंपनी आ रही होगी, तो वो उतना ज़्यादा लिंक्डइन। हाँ, अगर कैंपस का बात करो तो हाँ, ऑफ कैंपस में इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि तुम्हारे जो है लिंक्डइन के प्रोफाइल पे काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, डू ग्रेट थिंग्स एक्चुअली, क्योंकि अगर तुम अच्छी चीज़ें करोगे नहीं तो लिंक्डइन पे पोस्ट क्या करोगे। सो वही चीज़ है कि थोड़ा हार्ड वर्क करो। चार जो भी तुम्हारे लैंग्वेजेस वगैरह जो भी तुम सीखना चाहते हो, जो भी डोमेन चाहते हो, उसको अच्छे से परस्यू करो। उसके बारे में तुम जो भी सीख रहे हो, जो भी बना रहे हो, उसको लाके लिंक्डइन पे पोस्ट करो, ठीक है। एंड रेगुलरली पोस्ट करो कि हाँ मैं ये चीज़ बना रहा हूँ। जस्ट लाइक डॉक्यूमेंट योर एंटायर जर्नी फर्स्ट ईयर, योर 2028 बैच। आराम से उसको डॉक्यूमेंट करो बैठ के कि मैंने आज ये बनाया, ये सीखा, ये चीज़ हुआ। वो उसको डॉक्यूमेंट करते जाओगे, जो भी सर्टिफिकेशंस लेते जा रहे हो वो भी डॉक्यूमेंट करो। बिल्ड अ ब्रांड अराउंड इट। वो तो तुम्हारी प्रोफाइल है ना, वो ग्रो कर जाएगी 3 साल में 4 to 5,000 6,000 फॉलोअर्स पर। और वो फिर लाइक यू विल ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग रीच रिक्रूटर्स। और जो कनेक्शंस बनाने की बात कही, जितने ज़्यादा कनेक्शंस बनाओगे, इफ यू हैव लाइक 100 कनेक्शंस इन योर, तो जो तुम पोस्ट कर रहे हो वो 100 कनेक्शंस तक जा रहा है, ठीक है। कल को तुम किसी के पास रेफरल मांगने जाओगे तो वो तुमको रेफर करने में थोड़ा सा भी इफ और बट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि तुमने देखा है। तो स्ट्रॉन्ग ऑडियंस बनाने के लिए लाइक इट्स द सेम प्रीवियस क्वेश्चन थिंग कि things, do great things, and post it on LinkedIn. Build it का resume, build it like Shark Tank pitch, build it like that कि कोई देख के तुमको रिजेक्ट ना कर पाए। सो फॉलो वही सब करना है जो मैंने पूरे सेशन में बताया। सो दैट्स हाउ यू विल क्रिएट ऑनलाइन प्रेजेंस। उसके अलावा तुम ब्लॉग वगैरह लिख सकते हो, तुम कोई वेबसाइट बना के प्रोडक्ट हंट पे लॉन्च कर सकते हो, पीयर लिस्ट पे लॉन्च कर सकते हो, ताकि पब्लिक में उसको रिकॉग्निशन मिले। तो वो भी एक अच्छा तरीका है। ट्विटर पे जा सकते हो। दैट्स ऑल। भैया ये अर्नब देव ने पूछा है फ्रॉम द बैच ऑफ 2027। उन्होंने पूछा है कि व्हाट्स वन वे और एल्गोरिदम फॉर ऑप्टिमाइजिंग योर लिंक्डइन प्रोफाइल टू अट्रैक्ट रिक्रूटर्स एंड कनेक्शंस। There is not a particular algorithm to be honest. See, algorithms ही content writer particularly follow कर रहे होते हैं, ठीक है, कि they want the hack and हम्म। they want just views on their particular website and kind of that. See, algorithm for me, the algorithm simple in public, simple. I build in public, connect with other builders. बना रहा हूँ मैं उसको पब्लिक में बनाता हूँ, मैं उसको पब्लिकली पोस्ट करता हूँ। दैट्स वन थिंग। एंड मैं सिमिलर लोगों से कनेक्ट करता हूँ जो मेरे साथ लाइक सेम माइंडसेट के हैं, या जिनसे मुझे फायदा हो सकता है। बेसिकली लिंक्डइन इज ऑल अबाउट दैट। अगर वो रिक्रूटर्स है तो मैं उनके साथ कनेक्ट करता हूँ, अगर वो इंजीनियर्स हैं उनके साथ। सो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजिंग का वैसे मैंने पूरा तुमको बता ही दिया कि ऑप्टिमाइज कैसे करनी है, कौन सा सेक्शन कैसे करना है। उससे तुम्हारी प्रोफाइल ऑलरेडी रह के आएगी अच्छे से। कोई प्रोफाइल है जिसपे ना अबाउट सेक्शन है ना कोई सेक्शन है पड़े, तो वो खाली पड़ी रहेगी कोने में, कोई इसको भाव नहीं देगा, इवन एल्गोरिथम नहीं करेगा, ठीक है। सो पहले उसको ऑप्टिमाइज कर लो जितना, उसके बाद कंटिन्यूअसली पोस्ट तो हो जाएगा। Okay, now moving on to the last question. It is from Aditya of batch 2026. उन्होंने पूछा है कि what strategies helped you the most in landing your first internship? स्ट्रैटेजी
स्ट्रेटजीज टू बी फॉलोड या मोस्ट प्रोबेबली देखो सबसे ज़्यादा तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली तुमको कोल्ड डीएम्स वगैरह करने चाहिए। आजकल क्या है प्लेटफॉर्म्स ये जो इजी अप्लाई वाला लिंक्डइन का बटन होता है ना, थोड़ा सा इट्स काइंड ऑफ अ मिथ। तुम अगर इजी अप्लाई करके भूल जा रहे हो तो वो तुम भूल ही जाओगे, वो लिंक्डइन पे तुमको भूल जाएगा, फिर तुम वहाँ भी नहीं, तो यू आर नॉट लैंडिंग एनीवेयर, ठीक है। सो जब भी किसी अप्लाई वगैरह कर रहे हो तो सबसे पहले उसके रिक्रूटर को फाइंड आउट करो या लोगों को फाइंड आउट करो, उनको पर्सनली रीच आउट करो, दैट्स वन थिंग। अपने प्रोजेक्ट्स के साथ यू कैन लाइक ट्राई बिल्डिंग कनेक्शंस। द वन थिंग इज कि सोवा के बहुत अच्छे एलुमनाइज है जो अच्छी अच्छी कंपनी, सबसे पहले उनसे हेल्प मांगो, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसे ही बात किया अलग अलग कंपनीज में जो कॉलेज के एलुमनाई है, एंड दे आर सो देयर आर 10 ईयर सीनियर एम्प्लॉइज, 5 सीनियर, इनके पास जाओगे सो वो अच्छी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट में भी है, अमेजोन में भी है, ऑटोडेस्क में भी है, हर जगह है। उनको रीच आउट करो, दे विल ऑल्सो हेल्प यू। सो दीज आर 2-3 स्ट्रेटजीज बेसिकली, कोल्ड डीएम, पर्सनल रीच आउट, ये कॉलेज कनेक्शन एलुमनाई वाला, बस यही सब है, यही चीज़ें फॉलो की है मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने। ओके भैया, now we have come to the end of the selective questions. और भी बहुत सारे questions थे, तो अभी we are moving on to the interactive part. Now all the participants can actually ask their questions. They can unmute themselves and ask. And भैया बहुत लोगों ने Q&A जो पोर्शन है उसमें भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ पूछा है, तो I would request you to go one by one through the questions and answer all the queries. Kritika P. Okay, what you have asked? Does specialization in CSE matters? It does matter if you are actually doing a specialization. अगर सिर्फ उसको सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हो तो फिर वो सब्जेक्ट की तरह ही रह जाएगा। CSE कोर वाले भी काफ़ी सारे डोमेन्स में जाते हैं। I know a CSE core guy who is in web development, a core guy who is in like data science, data analytics. So it does matter if you treat it like a specialization. If you don't treat it like that, it will just be as good as a CSE degree. That's all. During interview, okay, during interview, yeah, they can ask about their specialization because you have a particular subject also, so वो पूछ सकते हैं। और अगर तुम उस रोल के लिए अपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली पूछेंगे, ठीक है। Will the number of connections matter when finding a job? Yeah, they do matter because अगर तुम्हारे कनेक्शन ज़्यादा हैं तो तुम लोगों को रीच आउट कर सकते हो, पूछ सकते हो उनसे कि हाँ मेरे को वो चाहिए, what do you want? What path to take for ESE VLSI embedded? For ESE VLSI, like if you from ECE, you should particularly focus on VLSI chip design and everything. Study more hard about semiconductors, right? Because this is a very growing domain, and there are both hardware and software jobs. So if you want the software job, you can go with C programming, embedded C programming, and whatever the embedded programming languages are there, which helps you to interact with hardware. You can ask your professors about it. uh, you can ask people who are working at Qualcomm or AMD like companies, chip design, they will help you better. uh, and for VLSI, I don't know much about VLSI, guys. Okay, फर्स्ट ईयर के लिए स्पेसिफिकली 60% है, पैकेज क्रैक करना 60%, अच्छा हुआ, प्लीज क्लियर इट। ओके, सी इफ यू हैव करियर 60%, सी देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज विच कम एंड दे हायर ऑन बेस्ड ऑफ स्किल्स। तुमको ज़्यादा अच्छा रहेगा कि तुम अपना मेंटेन करो बीटेक, लाइक बीटेक में जो तुम्हारा CGPA है उसको ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करो, कीप इट अबव 9 एज लाइक एज लॉन्ग एज पॉसिबल। एटलीस्ट थर्ड ईयर तक तुम्हारा 9 से ऊपर रहना चाहिए, सो दैट यू गेट शॉर्ट लिस्टेड। करियर वाली कंपनीज कुछ ही होती हैं, बहुत ज़्यादा कंपनीज पूरा करियर नहीं देखती, वो CGPA देखती हैं। करियर वाली कुछ हाइप, मतलब जो अच्छी कंपनीज है बहुत ज़्यादा, लाइक JP Morgan एंड ऑल, वो करियर देखती हैं पूरा। सो देर आर गुड कंपनीज विच विल कम टू कॉलेज एंड दे विल लुक योर CGPA, सो थोड़ा CGPA मेंटेन करके रखो, ठीक है। We can change a career path like from tech to other stuff. Yeah, you can change it anytime. That depends upon you and your ability to change. Okay. Another question: how should be our profile picture? Like, नहीं 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 नहीं, देखो बहुत ज़्यादा फॉर्मल की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कैजुअल की भी ज़रूरत नहीं है, सेल्फीज वगैरह मत लगाओ, बट जस्ट प्रोफाइल पिक्चर के लिए सिंपली लाइक तुम्हारा फेस सामने से विजिबल होना चाहिए, कीप अ जेंटल स्माइल। अगर कहीं फोटोशूट वगैरह करवा रखा है, मतलब लाइक किसी कंपटीशन वगैरह में ढंग से फोटो आ रखी है तो वो लगा दो, चलेगा। मतलब बहुत फनी नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल रखना है उसको, ठीक है। फ्यूचर ऑफ iOS devs in India. iOS स्पेसिफिकली iOS का फ्यूचर है, बट स्पेसिफिकली iOS के लिए अगर स्विफ्ट प्रोग्रामिंग में जाना है तो हाँ, स्विफ्ट का अच्छा खासा फ्यूचर है, बट आई वुड से डाइवर्सिफाई,
प्लीज डाइवर्सिफाई, एआई की तरफ थोड़ा जाओ, स्विफ्ट को करो ऐसा नहीं है, बट हाइब्रिड प्लेटफॉर्म वाली जो है, लाइक हाइब्रिड एप्स जो बनते हैं हाइब्रिड प्लेटफॉर्म के, उस पर भी शिफ्ट करो. यू कैन वर्क ऑन साइमल्टेनियसली वर्क ऑन iOS स्विफ्ट, बट डाइवर्सिफाई प्लीज. ओके. हाँ शशांक भैया, मैं शंभू बोल रहा हूँ। और मेरा एक क्वेश्चन था कि CSE DS हूँ मैं, और सो क्या करना चाहिए, क्या फोकस करना चाहिए, कौन सा यूट्यूब फॉलो करना चाहिए। अभी मैं फर्स्ट ईयर पे हूँ, फर्स्ट ईयर रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। CSE DS से यार तो मोस्टली ट्राई लाइक लर्निंग डेटा साइंस स्टफ. तुम्हारा डेटा साइंस का स्पेशलाइजेशन है ऑलरेडी, एंड देयर आर लाइक डैम गुड स्टफ ऑन थ्री ब्लू वन ब्राउन, एंड्रू कार्पैथी. These are the people who have designed like OpenAI from scratch. तो मशीन लर्निंग एंड डीएस के लिए काफ़ी अच्छा स्टेप है. मतलब वो है न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह अगर ग्राउंड से सीखने हैं तो यू कैन गो विद थ्री ब्लू वन ब्राउन, वो काफ़ी सही है. ठीक है. काफ़ी अच्छे चैनल्स हैं डीएस के लिए, लाइक आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, आई हैव बीन एक्सप्लोरिंग इट, बट इफ यू एक्सप्लोर यू विल फाइंड आउट. ठीक है. बट देयर आर टू नेम्स. एक थ्री ब्लू वन ब्राउन है, वो पूरा मतलब तुमको बेसिक समझा देगा. अबाउट कौन सा? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर थ्री ब्लू वन ब्राउन यूट्यूब चैनल है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर तुमको मशीन लर्निंग वगैरह में जाना है तो एंड्रयू करपाती, दैट गाय इज लाइक रियली वेल. सो ही इज अ co-builder of OpenAI's ChatGPT. You can follow these two guys. You can explore more. I'm not particularly from DS branch. I just work with AI stuff. Don't develop it right now. So you can तो follow somebody like somebody just answered in the comments. You can just check it out also. Code Basics, Krish Nayak. Yeah. तो मैं बोल रहा था कि अगर स्पेशलाइजेशन DS में है, और जैसे कि मैं दिनेश में हूँ और कोर में, कुछ हम लोग को बेनिफिट मिलेगा क्या, और नहीं तो समथिंग एल्स? See, I already answered it. If you treat your specialization like a specialization, then it's good. अगर सिर्फ उसको सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करके पढ़ के छोड़ दोगे और उस पर कोई फॉलो नहीं करोगे, कुछ बिल्ड नहीं करोगे, तो वो फिर इट इज़ लाइक सेम CS डिग्री, बट वो स्पेशलाइजेशन किसी काम की रह नहीं जाएगी. ठीक है. सो तुमको जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स मिले हुए हैं, जो तुमको पहले से पढ़ने को मिल रहे हैं और बाकी स्कोर वालों से, उस पर फोकस करो, उसके अराउंड बिल्ड करो, एंड बिल्ड प्रोजेक्ट्स, स्टार्ट बिल्डिंग देम, स्टार्ट लर्निंग अबाउट इट, नॉट फ्रॉम द बुक्स. और अब मतलब बुक्स में जितना पढ़ पा रहे हो पढ़ो, बुक्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं अगर तुम बुक्स को फॉलो कर रहे हो तो. उसके अलावा बाहर भी बहुत ज़्यादा स्टफ है. एक्सप्लोर. It's a word in our industry. It's called uh, like f around and find out. So just fuck around and find out simply. द Just mess लास्ट with the क्वेश्चन things. द लास्ट क्वेश्चन अगर जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि कॉलेज में जाके टीम बनाएंगे, या फिर कुछ फ्रेंड्स टीम होगा जिसके थ्रू हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे और स्टैंड आउट करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा कोई टीम नहीं है, कि ऐसा कोई फ्रेंड्स बने नहीं है जो जिनके साथ मैं प्रोजेक्ट बना सकूं, तो क्या उसके लिए आंसर रहेगा? Find friends online. There are a lot of people who are building in public. There are people who are on LinkedIn. There are people who are on Twitter. You can find it on जो tech Twitter है वो काफ़ी ज़्यादा strong है. Find people who are building in public. उनके projects हैं. You can find people on Kaggle. Kaggle पे hackathons होती हैं. You can team up with the people there. दूसरे colleges के लोग हैं, उनसे connect करो. ठीक है. So अगर college में नहीं मिल रहा है तो college के बाहर connect करो. Nobody is stopping you. अ, अगर बिना टीम से स्टैंड अप नहीं कर सकते क्या, बस ऐसे ही मना करना ही पड़ेगा ये? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है. Just do it like alone. If you can do it. And guys, another thing. If any of you guys are looking for any team to do any projects, or are having some ideas or unable to do it, make it to projects due to some lack of teammates, we at CNX ITR are hosting Project Nexus, under which we take some ideas and all of you guys can contribute openly in that. So do check it out in our page as well. Maybe it might help many of you guys in building some of the great projects. Okay, great, great. I wish you guys like find your internships, your jobs really well, and really soon. Build good projects, and uh, I think when you reach out to me for referrals, you should have a good portfolio. Either I'm not giving you referral for it. Thank you, everyone. Thank you so much for like staying till this time. It's almost like 9:30. मुझे लगा नहीं था इतनी देर तक कोई सुनने वाला है वैसे. I do bore people sometime, but ठीक है. अगर तुम लोगों को सीखने को मिला, that is really really good. All I just wanted that whatever I learned in my 4-year journey in cracking jobs and everything, I just share it with my juniors because it is really important. The times are tough, the bars are really high. The people who are asking that whether we should do projects, whether we should do lead code, or whether we should like focus on some non-tech stuff,
believe me, you have to do all of it because the bar is really high. Junior engineer positions are not that much like more often in the market right now. So although entry level roles actually require you to have a little bit more than an entry level knowledge, right? So for you guys, as soon as you shift yourself a little bit towards AI, that would be really good. And whatever you are doing, even if you are in Android, you are in web, you are in cloud, shift a little towards AI and actually know your craft. If you don't know your craft, you are a very like what you say, entry level intern guy, and you try it, so it would be like really hard for you. So just know your craft well. That's all my from my side. Thank you. भैया थैंक यू फॉर सच एन इनसाइट. अभी एक टास्क को अनाउंसमेंट करना बाकी है, उसके बाद वी कैन रैप इट अप. अच्छा, ये फीडबैक फॉर्म है आप सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए. अगर आपने एंजॉय किया, अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए शशांक भैया से, तो प्लीज फील फ्री टू गिव अस अ फीडबैक. All right, we have a small task for you all. Moreover, guys, just 1 minute of your time, basically. So this session was actually like more of like powered by Skill Valley, you can say. Uh, Particularly asking like if I like tell you that where my journey started, somebody was asking कि group नहीं मिलता ना. So kind of you can find it in communities also. There is a community called Skill Valley. मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था सेकेंड ईयर में. वहीं मैंने अपनी पहली फर्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी इंटर्न करी थी और वहीं पर फ्रंट एंड की भी इंटर्न करी थी एंड इट वाज अ पेड वन. सो वहाँ पर ही मैंने अपना एक फर्स्ट प्रोडक्ट भी बनाया था जिसको मार्केट में लॉन्च किया था. सो if you are like really looking for people, good people to come in, like build a community, you can join Skill Valley also. You can find another community also. There are good people in the communities, you can find them. uh, to be honest, Skill Valley is now turning like more into the AI automation stuff, because अभी तक हम सिर्फ प्रोडक्ट्स पे फोकस करते थे. स्टूडेंट्स को प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग प्रमोट करते थे कि अपने प्रोडक्ट्स बना के पब्लिक में लॉन्च करो ताकि बहुत ज़्यादा आप लोगों को रीच मिले, जिससे लाइक इवन यू कैन सेल इट और यू कैन लाइक जस्ट लाइक फ्लॉन्ट इट एवरीवेयर, विच विल हेल्प यू गेट अ जॉब और इंटर्नशिप. बट अभी हम लोग एआई ऑटोमेशन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. सो लाइक वी आर बिल्डिंग ऑटोमेशन स्टफ. वी आर टेलिंग आवर जूनियर्स ऑल्सो कि ऐसी चीज़ें बनाओ जो ऑटोमेट करने के लिए कंपनीज को हेल्प करें. ठीक है, सो वी विल बी लॉन्चिंग कोहॉर्ट्स एंड एवरीथिंग. सो जस्ट फॉलो द लिंक्डइन पेज ऑफ स्किल वैली. दैट्स ऑल. थैंक यू गाइस. Thank you so much, Bhaiya, for such a learning session. Thank you so much for taking out time for us. It was great learning from you. Okay, so there is actually a task for every participant over here. अगर आप लोगों ने पूरा फॉलो अप किया है तो फिर इट्स अ वेरी नाइस चांस टू गेट acknowledged by Coding Ninjas ITR. So basically what you have to do is you have to post about this session on your LinkedIn, and you have to use all the things that you have learned from Shashank Bhaiya right now. You use all that and post it, and we will look through all the posts for a certain period of time, and then obviously one of the posts that is performing the best will be getting a badge and also recognition from our side. Guys, सभी लोग LinkedIn पे post कर लो. Within 24 hours, our team will review that based on the content and the images we have attached and the hashtags we have used. Using that, we would decide the winners of this contest, of this event, and you would be rewarded accordingly. So we are Yes. proceeding to the last part of the whole session. Guys, he was a host for the whole evening. So do all of you guys do really follow him. He's also LinkedIn top voice. So connect to him over LinkedIn. You all would be really helped by that. किसी ने पूछा है कि what to add in media and then post. You can take a screenshot of this meeting, okay? Or else if you are a participant, अगर आपने feedback का QR भरा होगा तो फिर आपको certificate भी आएगा, आप वो भी post कर सकते हैं. And you have to obviously remember to tag us over there so that we get in touch with you. And I guess that's the end. So guys, yeah, this was the it. The We are at the end of the meeting, but many more to come on the way. So everyone, do follow us on the LinkedIn and Instagram. Many more sessions are lined up in few weeks. Meet you all really soon.
Thank you guys for joining. You are a great audience. Thank you. And that brings us to the end of Tech Brew episode 1. Today was all about the power of LinkedIn. A massive thank you to Shashank Bhaiya for such an insightful and hands on session. And I'm sure a lot of us are walking away with fresh ideas, profile updates in mind, and a new confidence in us. Obviously, आप सबको याद दिलाने के लिए the top 3 performers will be getting badges. The brewmaster will be the one who topped the Menti quiz. The task crafter will be the best task completion, and other people will also be getting certificates if you stay till the end and fill up the feedback form. And I guess that's it. This is just actually the beginning of Tech View. We've got more episodes coming, more skills to unlock, and more growth ahead. Thank you so much for your time. Thank you guys. See you at Tech Brew episode 2.